behalf of Akola branch, Ahmednagar branch, and Aurangabad branch on the second session of this GST conclave, amendment in GST ITC to be claimed and issues arising due to these differences. This session was kept as an opening session of Bimal Jain sir, as we all the three branches have special bond with Bimal Jain sir. कभी भी अगर नगर का national conference is there at Shirdi, Bimal Jain session is definitely there. Aurangabad, every time sir is there on the national conference, and at Shegaon when we had a national conference, sir was there, and last year Amravati also sir was there. So any session on GST is planned by all these three branches. Sir is definitely there with us. So I welcome you, sir, on behalf of all the three branches. We kept you as an opening batsman, but due to some issues, second session hua hai, but definitely this session will be a great one. I also welcome our GST expert and WIRC chairman, Manish Gadia sir, who is also very expert in GST. He will be having his special remarks today with all of us. Before we move forward, I request Akola branch chairman Keyur Dedia to give opening remarks. Thank you, Jalaj bhai. Very warm welcome to one and all. Good afternoon to our today's speaker, Bimal Jain sir, and good afternoon to our WIRC chairman, Manish Gadia sir. दोनों ही GST के स्टॉलवर्ड्स एंड एक्सपर्ट्स. जैसे जलद सर ने पहले ही कहा, सेशन ओपनिंग बैट्समैन का बिमल सर का था, बट ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस टुडे वी हैव अ सेशन. And we all are very excited and eager to listen to today's Bimal Jain sir's session on the amendments issues, the 2A, 2B, and all the related issues. So welcome, Bimal sir. I also thank to other two branches, Sandeep Desada sir from Ahmednagar branch and Pankaj Soni sir from Aurangabad branch, who have contributed and worked hard for making this session successful. So without not wasting much more time, I hand over for further charge to Jalaj bhai sir. Jalaj bhai. Thank you, Q. I now request our chairman Manish Gadia sir to give the remarks for this GST conclave. So thank you very much, Jalaj, my good friend Vimal ji. Seeing you after a long time, maybe on virtual mode. We are missing your sessions in physical mode nowadays. So definitely soon we will meet. Keyur Dedia, chairman of Akola branch, Sandeep Desada, chairman of Nagar branch, Kiran Bhandari, past chairman Nagar, Sachin, Jalaj, and Pankaj Soni. I think I'm missing him. He is not there on the screen. So it's a great moment that you have started a GST conclave, which is the need of the hour. And I will tell you, my experience is the opening batsman, once it comes on one down, he perform better. Like Sachin Tendulkar, or list is long. So that's what you are going to experience today with Vimalji. And really the topic what you have selected is also a good topic. Lot of confusions are there as far as the ITC to be claimed as per 2B, as per book 2A. इतना सब झमेला है, पता नहीं कि क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. So Vimal ji will be the right person to tell us on this. And of course, the good work what you as a branches are doing, continue to do that. But few of the initiative I will tell you about WIRC. We expect a support from all the branches on this. And I took up as chairman of WIRC. The first and most request what I received till now is that, sir, article nahi milte. I don't know about Nagar and Akola and Aurangabad, whether the position is same or not. You are facing that problem is there or not. What request I received is the article to come out with this problem. WIRC has taken a new initiative that is called TEL, that is Train, Earn and Learn, where we are giving a 36-hour training to undergraduate students for pursuing BCom, but
not pursuing CA course. And on that 36 hour, we will train them about GST return, income tax return, CS return, tally, Excel, and some soft communication skills. So they will be ready to work with the offer. After doing this 36-hour course, we will give certificate of participation to them and try to place them with the CA, where they will undergo as a trainee for at least 1 year and get some practical experience. So this is a good, or I should say win-win situation for CA, because they are going to get trainee, student because they are getting some practical experience, and their future will be secure. And of course, it is good for colleges also, because as per university, they need to undergo this kind of training, need to give this 36-hour training to the student for getting their upgradation as far as the university is concerned. So I request to promote this. Apart from that, WIRC has also started uploading short video of update on a real time. शायद विमल जी जितना फास्ट हम अपडेट अपलोड नहीं कर पाते, because we have our own limitations at WIRC, but definitely we are uploading the short video of update on our YouTube channel, and I request to get the impact of the any changes, especially in GST and income tax. You can subscribe to WIRC YouTube channel. Apart from that, we have also started our Telegram channel, where you can get a real-time information about what is happening in WIRC. You can join this channel. We have also started Tech Age series, that is every third Thursday of the month, we are discussing about technology and which is the need of the hour. And I expect and I request all three branches to have at least once in a month or once in a 2 month any program on technology, which is the need of the hour for our member. We are also starting next month a series on learning from legend, where one of the legend will come and share his life experience in an interview form, where we can learn various things from his life experience. And the first such legend who is going to speak with us will be none other than Bansi S. Mehta. So keep on watching at WIRC website for all these updates. So thank you very much for inviting me here. Over to you, Jalaj. Thank you, Manish sir, and thank you for sharing the initiative what WIRC is taking. Definitely, we all will join the Telegram channel, and other will be part of the other initiatives of WIRC. Bimal Jain sir don't require any introduction in all the three branches, as I said, but still I request CA Sachin Sayani to give formal introduction of Bimal Jain sir. Thank you, Jalaj bhai. Good evening, one and all. It's my privilege to introduce today's speaker, CA Bimal Jain sir. With respect to professional experience, sir is a member of ICAI since May 1994 and a member of ICSI since December 2006, along with a bachelor's degree in law. Also, he is a qualified SAP consultant and has more than 21 years of experience in indirect taxes and specializes in all aspects of GST, service tax, VAT, central excise, foreign trade policy, special economic zone, export oriented unit, and export import laws. He has working experience of more than 18 years in renowned companies with LG Electronics India Private Limited, Honda Motorcycle and Scooters India Private Limited, and many more. And presently, he is the executive director of A to Z Tax Corp LLP, a boutique indirect tax firm. With respect to significant transactions, he has hands-on experience in providing opinion and advisory services, carrying out diagnostic review of business operations, process review, structuring of business model, undertaking litigation services at all appropriate forum, including CESTAT, representation before TRU, CBEC, DGFT, etc.,
for various matters concerning to trade, industry and commerce. Sir is a professional member of various committees, like he is a chairman of Indirect Tax Committee of PhD Chamber of Commerce, chairman of Corporate Advisory Committee of IPEM Group of Institutions. He is a special invitee of Indirect Tax Committee of ICAI and ICSI. He is a member of eminent faculties in Indirect Tax Committees of ICAI, ICSI and ICMA. With respect to award and recognition, Sir was a keynote speaker at a Guinness World Record made by ICSI in largest taxation lesson on GST, attended by 4,500 plus participants, breaking earlier record of Japan. With this, I welcome Speaker Sir and request him to further proceed with the session. Thank you, sir. At the outset, let me thank all my friends, starting with Manish ji from WIRC, Chairman of 3 branches, Akola, KU ji, Ahmednagar, Sandeep ji, Aurangabad, Pankaj Soni ji, but मैं उनको देख नहीं पा रहा. My other friends, which they are visible and I can see them. Jalaj is there, Sachin Sayani is there. Sir, I am also here. अरे तो आ जाना, सामने आ जा. अब तो वीडियो बंद कर देगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता. So nice of you. So nice of you. Yes, sir. Yes, sir. And all the participants who are joining on Friday evening, 28th May, 43rd GST Council meeting is going on. जब हम लोग खत्म करेंगे तो 7 बजे पे FM आ जाएंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कि आज हुआ क्या. सेंटर और स्टेट ने मिलके डिसीजन लिए, किसके लिए? हमारे लिए. अब क्या हमारे डिसीजन होंगे वो तो 7 बजे मालूम पड़ेगा, 7 o'clock. नेवरदलेस मैं 2 चीजें चाहता हूं. एक तो चैट को अनेबल्ड कर दिया जाए, यानी चैट बॉक्स को आप सब यूज करेंगे. चैट बॉक्स बंद नहीं होगा, ये वर्चुअल है, बट आज हम एंजॉय करेंगे. मैं सबसे कह रहा हूं, जितने भी लोग जुड़े हैं अभी तक, डन हो गया, बिल्कुल आप सब एंजॉय करेंगे. तो चैट बॉक्स हर कोई यूज कर सकता है, एक्सेप्ट मेंबरशिप नंबर फॉर CPRs, जिसको हम सबसे लास्ट में यूज करेंगे. जिसको हम सबसे लास्ट में यूज करेंगे. देखिए, मुझसे पूछा सर, केयू जी ने पूछा सर अगर आप अपनी स्क्रीन शेयरिंग चेक करना चाहते हैं, एक काम और करें अपन, जो भी ऑर्गेनाइजर हैं सबको म्यूट कर दें, सिर्फ मुझे अनम्यूट रखें. और जो भी आज ज्वाइन किए, लाइक केयू जी, संदीप जी, जलज आप कहाँ गए? आप कहीं जाएंगे नहीं? नहीं सर, मैं आपके साथ ही हूँ. आज मैं आप लोगों को कौन बनेगा करोड़पति वाली सीट पे, हॉट सीट पे बैठाने वाला हूं. तो मुझे 6-7 बंदे चाहिए होंगे आज, जो मेरे साथ टोटल ऑडियंस को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे. यानी ऑडियंस चैट बॉक्स में आंसर करेगी हाँ ना, जो भी समझ में आता है, और आप हॉट सीट पे बैठ के बताएंगे कि आपका आंसर क्या है. मैं ये मान लूंगा कि आपने जो आंसर दिया वो ऑडियंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये सबको म्यूट करना पड़ेगा पहले आपको. संदीप भाई म्यूट कीजिए. डन. 1 मिनट. हो गया, ऑल डन. तो हम जो 2-3 लोग हैं जो पैनल पे हैं, 5-6 लोग हैं, लेकिन ऑडियंस में भी 2-3 लोगों को लूंगा और उनको भी कौन बनेगा करोड़पति की सीट पे बैठाऊंगा. आज आप एंजॉय कीजिए एक डिफरेंट तरीके का प्रेजेंटेशन. फिजिकली हम देखते हैं, फिजिकली हम एंजॉय भी करते हैं, तब हम बॉडी लैंग्वेज भी देख रहे होते हैं. तो जितना मैं बैठ के अपने हाथ हिला सकता हूं, मैं सब हिलाऊंगा. और मैं ये भी चाहता हूं कि आप लोग अपना वीडियो ऑन रखिए, बट आवाज एकदम म्यूट रखिए. हो सकता है मैं आपको देख के पहचान जाऊं, अरे औरंगाबाद का ये तो वही है, अरे अकोला के यही है, या अहमदनगर के यही है. तो हम इंजॉय करेंगे.
हम चाहते हैं इसको एंजॉय करना। बिल्कुल। मुझे अगर आप घर पे हैं ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार, बेड पे हैं, सिर्फ मुंह ही तो दिखाना। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि बेड पे हैं या टेबल पे हैं। मैं तो कह रहा हूँ बस मुझे चेहरा दिखना चाहिए आपका, आप दिखने चाहिए, जिससे जब आप चेहरे के हाँ और ना करेंगे ना अपने व्यू से, तो मुझे समझ में आएगा कि आप मेरी बात पे सहमत हैं और आप मेरी बात पे सहमत नहीं हैं। हम आज 6 केस स्टडी करेंगे, 6, ओनली 6, यानी 2 घंटे में देखिए, कोई महावीर हैं, उन्होंने कहा दिस इज जस्ट लाइक ए जीएसटी काउंसिल मीटिंग। बिल्कुल, देखिए हम सब लोग बैठ गए हैं और सब मिलके जीएसटी के काउंसिल मीटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही एंजॉय करना है, और टेक्निकल नहीं देखने का, लॉ क्या है नहीं समझने का, सिर्फ एंजॉय करने का। देखिए जो टॉपिक मुझे दिया गया जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट वर्सेस 2A, 2B एंड बुक्स। बहुत प्रॉब्लम है, पूरा पैन इंडिया स्ट्रगल कर रहा है सर, किसको फॉलो करें, 2A को, 2B को, या बुक्स में जो क्रेडिट आया है उसको। तो पहली केस स्टडी हमको करनी है और समझनी है, और आप सब एंजॉय करेंगे, मेरा टेक है। और आप लोग चैट बॉक्स में जब जब मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा वो आप यस नो चैट बॉक्स में डालेंगे। तो अभी सबसे पहले मैं केयूर को चाहता हूं कि कौन बनेगा करोड़पति की सीट पे बैठे। अरे यस सर। तो सचिन, संदीप आप जाइएगा नहीं, और पंकज आप फटाफट अपना ड्रेस कोड चेंज करके आइए। आई नो दैट आप टी शर्ट में हो और आप हवा हो गए, तो पंकज को आप इन्फॉर्म कर दो, पंकज आप जाओगे नहीं, वीडियो ऑन रहने का, मुझे आपका चेहरा दिखना मांगता, ठीक है ना पंकज? क्योंकि आप भी एक कैंडिडेट हो कौन बनेगा करोड़पति के लिए। ओके सर, ओके। मैं केयूर से स्टार्ट करता हूँ। यस सर, यस सर। केयूर, हाँ, आप मुझे ये बताइए, और पहली केस स्टडी आप सभी के लिए है, जो जो वॉच कर रहे हैं सबके लिए है। GSTR 2A, which came on 9th of October 2019. yes. As a GST tax expert or tax practitioners, what is your take? मुझे अगर क्रेडिट लेना है तो मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखूं, या GSTR 2A को देखूं, या 2B को देखूं? तो आपको सिंपल आंसर करना है, तो चैट बॉक्स में भी सबसे मैं आंसर मांगूंगा कि आपको यह बताना है क्या GSTR 2A देखना जरूरी है फॉर अवेलिंग क्रेडिट। से यस और नो। सो चैट बॉक्स में आप आंसर डालेंगे कि 2A देखना पड़ेगा सर, कोई उपाय नहीं है, या 2B देखना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, या आप कहते हैं नहीं सर देखना जरूरी नहीं है, नो देखना जरूरी नहीं है। तो केयू जी, व्हाट इज योर आंसर फर्स्ट? पहले आपका आंसर ले लूं। सर 2A देखना जरूरी है, बट हमें बुक्स के साथ उसको रिकंसाइल करना है, और फिर उसके बाद में जो क्रेडिट्स नहीं आए हैं वो नेसेसरी जो टाइम फ्रेम रहता है वहां तक के वी हैव टू गेट इन टच विद आवर सप्लायर्स कि भाई वो 2A में क्रेडिट मिले। क्रेडिट नहीं मिलता एक पर्टिकुलर डेट तक के, तो फिर बाद में उसके रिपरकशंस कुछ हो सकते हैं जो नेगेटिव एंड व्हिच में बी अ लॉस टू अ डीलर। अब मैं आपसे केयू जी, आपके जरिए आप सभी से चैट बॉक्स में एक पूर्वा है जिनने ना कहा, मुझे नहीं मालूम, मैंने पूर्वा का नाम आइडेंटिफाई किया, और पूर्वा कहती हैं 2A देखने की जरूरत नहीं है। तो मेरी लिस्ट में पूर्वा को मैंने पार्क कर लिया। पूर्वा को हम एक मौका देंगे 101 इंटरेक्शन करने का। एक अजीत यादिकर है जिनने नो कहा। मैक्सिमम लोगों ने यस कहा कि भाई 2A तो देखना ही पड़ेगा। एक पीयूष लोहिया है जिनने ना कहा। अब देखिए, मैं आपको पहले अपने कुछ बैकग्राउंड दूं, उसके बाद अपन कंक्लूड करेंगे कि हमें देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। मान लीजिए आप सब रिसिपिएंट हैं, सब बायर हैं,
सब मान लीजिए बायर है, रेसिपिएंट है। 2A आप लोगों के लिए रिलेवेंट है, आप सब देखना चाहेंगे और आपने कहा 2A देखना पड़ेगा। मैं सप्लायर हूं, मान लीजिए पहली मिस्टेक मेरे से ये हुई कि मुझे जीएसटी नंबर आपका डालना था, केयूर भाई आपका डालना था, पर गलती से मैंने संदीप जी का जीएसटी नंबर डाल दिया। केयूर जी आपके 2A में नहीं आएगा, आपके 2A में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन ये होगा, क्या मैं क्रेडिट ले सकता हूं जहां से मैंने स्टार्ट किया? पहली बात। दूसरी बात, मेरी ट्रांजैक्शन B2B थी केयूर भाई। यस सर। दिल्ली से महाराष्ट्र मेरी ट्रांजैक्शन B2B थी, रजिस्टर्ड सप्लायर, रजिस्टर्ड रिसिपिएंट। अब मैंने गलती से उस ट्रांजैक्शन को B2C में दिखा दिया। आपके 2A में आएगा केयूर भाई? 2A में नहीं आएगा। नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो मैं भी उसी रिलेवेंस से मैंने स्टार्ट किया है कि 2A मेरे लिए देखना जरूरी है, मैंने यहां से स्टार्ट किया था, राइट। तीसरा फैक्टर लेके आता हूं सर। तीसरे फैक्टर में कई बार हमसे गलती हो जाती है कि मुझे प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र दिखानी थी, क्योंकि मैंने महाराष्ट्र सप्लाई किया है, और गलती से मैंने उसे इंट्रा स्टेट दिखा दिया, दिल्ली का CGST एंड दिल्ली SGST। हो जाता है ना कई बार गलती। आपके GST 2A में दिखेगा वो? नहीं दिखेगा। चौथी गलती, मैंने GSTR 1 तो भरा है एज ए सप्लायर केयूर भाई। यस सर। आपके 2A में भी आ रहा होगा, पर GSTR 3B नहीं भरा, टैक्सेस पे नहीं किए मैंने। इसका उल्टा कर लेते हैं, 3B भरा, टैक्सेस पे किए मैंने, पर GSTR 1 नहीं भरा। तो आपके 2A में आएगा केयूर भाई? नहीं आएगा, नहीं आएगा। अब मैं सभी दोस्तों से, जितने दोस्तों ने आज ज्वाइन किया है, देखिए मैं कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं बना रहा और दे भी नहीं रहा। मेरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आज आप हो। एक पेपर लीजिए, पेन लीजिए, कुछ नोट कीजिए, क्योंकि जो चीज मैं आपको बता रहा हूं और बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपको आज मैं स्ट्रॉन्ग बना के जा रहा हूं। एक बुकिश नॉलेज, एक प्रैक्टिकल नॉलेज, उन दोनों की मैरिज कैसे करनी चाहिए। थ्योरी का होना भी जरूरी है, बट बिना प्रैक्टिकल मजा नहीं आता। सो केयूर भाई, यस सर। अब हमको ये समझना है और समझते हुए चलना है कि हम कैसे इंटरेस्टिंगली इस इशू को सॉल्व करें। तो अब तक मैंने जितने एग्जाम्पल दिए, और मैं जो हैंडमेड नोट बना रहे हैं ना, उनको एक एडवांटेज भी दे दूं। मैं अपना मोबाइल नंबर आपको दूंगा एट द एंड, अभी नहीं, एट द एंड। जो आपने हैंडमेड नोट बनाए वो आप मुझे भेजिएगा। मैं देखूं तो सही कितने लोगों ने, आपका 1 घंटा चाहिए आज मुझे, 1 घंटा आप सुनिए, आई एम डैम श्योर आपको मजा आ जाएगा। और अगर मजा नहीं आया तो पेटीएम अकाउंट भेज दीजिएगा, आई विल पे फीस कि आपने मुझे अपना 1 घंटा दिया। आई विल पे फीस कि आपने मुझे अपना 1 घंटा दिया। और खत्म करते वक्त अगर आपको लग जाए कि हमें मजा आ गया, तो मैं अपना पेटीएम अकाउंट नंबर दे दूंगा, आप मुझे फीस भेज दीजिएगा। तो आज हम एंजॉय करेंगे, दैट इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव इज। और चैट बॉक्स को फुल्ली यूज करेंगे। सो राजेंद्र झवर हैं, उन्होंने कहा सर डन। तो सबने पेन पेपर ले लिए हैं, नोट भी कर लिया होगा। मैंने कहा कि 2A का रिलेवेंस है क्या। अगर आप मेरे से समझना चाहें तो मैं आज आपसे कहता हूं 2A का कोई रिलेवेंस नहीं है। दैट इज माय आंसर।
2A का कोई रिलेवेंस नहीं है। आप सबने यस किया है। अब आप मुझसे पूछना भी चाहेंगे बिमल जी किस बैकग्राउंड पे आप कह रहे हैं कि 2A का कोई रिलेवेंस नहीं है। देखिए मैं आपको अब बैकग्राउंड देता हूं, और बैकग्राउंड समझने के लिए आपको मजा भी लेना पड़ेगा और एंजॉय भी करना पड़ेगा। सेक्शन 16, अब ये सब चीजें आप थोड़ी थोड़ी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जो टेक्निकल है वो टेक्निकल से ही आएगा। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में 4 कंडीशन होती थी टू अवेल द क्रेडिट। तो आपको कल अगर याद करना पड़ेगा कहां लिखा हुआ है तो आप वहां जाके देख सकते हैं। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में 4 कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन, एज ए रिसिपिएंट, एज ए बायर, आपके पास टैक्स इनवॉइस की कॉपी होनी चाहिए। केयूर भाई सिर हिलाते रहना है। जो जिनका वीडियो मैं देख रहा हूं वो अपना बस सर हिलाएं तो मैं समझ जाऊंगा यस उनको समझ में आ रही है बात। आपके पास टैक्स इनवॉइस की कॉपी होनी चाहिए। सेकंड, आपने गुड्स और सर्विसेज रिसीव कर लिए हों। As a recipient, as a buyer, you must have received goods and services. Third, your supplier, which is Bimal Jain from Delhi, must have paid taxes to the government department, government exchequer. मैंने टैक्स जमा करा दिया हो। अब इसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट ये कंडीशन है, तीसरी कंडीशन है। और चौथी कंडीशन है रेगुलरली रिटर्न भरता हो। राइट, एक है ना रेगुलरली रिटर्न भरता हो, तो वो किसके लिए, सप्लायर के लिए या रिसिपिएंट के लिए। ये चैट बॉक्स में मुझे आपसे पूछना है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज डी किसकी बात करता है, कौन रेगुलरली रिटर्न भरता हो, सप्लायर या रिसिपिएंट। चैट बॉक्स में डालिए प्लीज, चैट बॉक्स में डालिए। सब कयूर जी से तो मैं लास्ट में पूछूंगा, सो दैट ही विल गेट ए प्रिविलेज कि यार सप्लायर की बात है प्रोविजन में, या कई बार हमें समझना पड़ेगा। 4 साल हो गए हैं जीएसटी को, अगर हम खुद नहीं जानेंगे तो प्रीमियम इन फीस कभी नहीं आएगी, हमको जानना पड़ेगा। तो केयूर भाई आपका क्या आंसर होगा, सप्लायर रेगुलर भरता हो या रेसिपिएंट भरता हो। सर रेसिपिएंट आएगा, सप्लायर के लिए तो पहले टैक्सेस पेमेंट की बात बोल दी है। परफेक्ट। प्रोविजन के हिसाब से जिन जिन ने गलत आंसर दिया, जिन जिन ने सप्लायर लिखा, गलत है। रिसिपिएंट मस्ट बी रेगुलरली फाइलिंग द रिटर्न, यानी आपने अपने आप को 4 कंडीशन बता दी। क्विकली रिपीट कर दूं, टैक्स इनवॉइस की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। You must have received goods and services. Third, your supplier, Bimal Jain, must have paid taxes, and you as a recipient filing regular return. अब इस चारों कंडीशन में 2A की कहीं पे बात है केयूर भाई? नहीं है, प्रोविजन में नहीं है। अब एक चेंज आया और उस चेंज के जरिए आज मैं प्रूफ करने वाला हूं कि 2A देखने की जरूरत है ही नहीं, थी नहीं, ये सब ड्रामा है, ड्रामा। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 आफ्टर क्लॉज ए सब क्लॉज डबल ए को इंसर्ट किया गया। क्लॉज 100 ऑफ फाइनेंस बिल 2021। संदीप भाई, संदीप भाई, नहीं संदीप भाई बात कर रहे किसी से। संदीप भाई, संदीप भाई आवाज, हाँ आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है, उस बंदा या बंदी से बोलिए अभी 1 घंटा मैंने बिमल जी को टाइम दिया है, तो हम इधर उधर बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को कौन बनेगा करोड़पति के सीट के लिए तैयार किया है। और थोड़ा क्या होता है मालूम है, मैं जब देख रहा होता हूँ ना वीडियो, आपका अटेंशन अगर मेरी ओर होता तो मुझे लगता है हम फिजिकली चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वर्चुअल मोड का सबसे बड़ा नुकसान क्या है मालूम है,
ये ठीक है बोलता रहे, सुन रहे हैं, चल रहा है, वीडियो बंद कर दिया, अरे चाय लेके आ रहे, इधर आ और सुन वो किया रे, ITR गया क्या उसका रे, गया हुआ क्या, और इधर में बिमल जी बोले जा रहे सुनो 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 सुनो, नहीं मजा आएगा, मजा नहीं आएगा। 1 घंटा देने का, 1 घंटा देने का, 1 घंटा दीजिए। अगर मजा नहीं आए ना आपको, देखिए कई बार हमको मजा लेने के लिए मजा में इन करना पड़ता है। मैं आपको मजा देना चाहूं, भगवान कहें जा भक्त तुझे आशीर्वाद दिया, और भक्त बोलता है मतलब ही नहीं तेरे से, जा, तो वो आशीर्वाद मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। दोनों का होना जरूरी है, प्रभु का होना भी जरूरी है और भक्त का होना भी जरूरी है। हमारा संदीप भाई? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आगे बढ़े। यस। तो मैंने 4 कंडीशन बता दी, फिर मैंने लोगों से कहा, और अब आप जज बन जाइए, जज भी आपको बनना है और डिसीजन देना है आपको। मैंने कहा GSTR 2A देखने की जरूरत नहीं है, लॉ वाइज नहीं। अब इसको प्रूफ करने के लिए मैं आपको बताता हूं, ये फाइनेंस बिल जो बजट पेश हुआ था, यूनियन बजट 2021, उसमें क्लॉज था, क्लॉज नंबर 100, उसमें एक अमेंडमेंट किया गया, उन्हें एक सब क्लॉज AA अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 सब क्लॉज A के बाद इंसर्ट किया। इस AA है क्या? AA ये बोलता है, और ध्यान से सुनिए, AA बोलता है कि बायर, रिसिपिएंट, आपको 4 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, और 5वां एक कंडीशन दे दी आपको, 5वीं कंडीशन। और वो 5वीं कंडीशन क्या बोलती है मालूम है? आपके सप्लायर ने जिस इनवॉइस पे आपने क्रेडिट लिया है, उसको GSTR 1 में अपलोड कर दिया हो और आपको कम्युनिकेट कर दिया हो। इतनी बात कही है बस केयूर भाई, जस्ट इतनी सी बात कही है। 5वीं कंडीशन, आपके सप्लायर ने उस इनवॉइस को GSTR 1 पे चढ़ा दिया हो। इसका मतलब 1 पे चढ़ाया मतलब आपके अब 2A में आएगा। एम आई राइट? यस यस सर। बट ये क्लॉज अभी नोटिफाई नहीं हुआ है। फाइनेंस बिल पास हो गया 28 मार्च 2021 को, प्रेसिडेंट हैज गिवन एसेंट, बट all relevant clauses of GST is yet to be notified. तो इसका मतलब वर्चुअली ये हुआ केयूर भाई, यस, कि ये प्रोस्पेक्टिव क्लॉज है, रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है। पहला मैं आपको ये बता दूं। तो आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा, भी मैं आपसे पूछूंगा, जब प्रोविजन ही आप ये लेके आ रहे हो, आज लेके आ रहे हो, जो अभी येट टू बी नोटिफाइड है, और वो कहता है कि रिसिपिएंट एंड बायर को क्रेडिट तभी मिलेगी जब सप्लायर ने इनवॉइस को GSTR 1 पे चढ़ा दिया हो और आपको कम्युनिकेट कर दिया हो। एम आई राइट? जब आज की डेट में ये क्लॉज येट टू बी नोटिफाइड है, तो 2A के ऊपर मेरी क्रेडिट कहां से डिपेंडेंट हुई? ये तो तभी होगी ना जब ये नोटिफाई होगा। एम आई राइट? ये तभी होगी ना जब ये नोटिफाई होगा, सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 सब क्लॉज AA नोटिफाई होगा, तभी 2A की बात आएगी ना। अब आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताइए, आई एम लुकिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू, अगर इतना आर्गुमेंट मैं सुन लूं, लीगल आर्गुमेंट, इसको सुनने के बाद एज ए लॉयर, एज ए जज, आपका से क्या है? सर अगर ये सब क्लॉज आपको मान लीजिए नहीं मालूम था और अब मालूम पड़ा, आपको मालूम नहीं था अब मालूम पड़ा, और वो कहता है कि मैंने GSTR 1 में चढ़ाया हो, तभी 2A में दिखेगा। तो ये तो क्लॉज अभी नोटिफाई होगा, अभी तो है ही नहीं। तो पुराने के लिए इतना माता पच्ची, इतना बोलना कि 2A रिलेवेंट है, मेरे हिसाब से 2A रिलेवेंट नहीं है। नाउ प्लीज टेल मी एज ए जज, मेरा इस आर्गुमेंट को सुनने के बाद, केयूर भाई तो आंसर देंगे, मेरे इस आर्गुमेंट को सुनने के बाद हाउ मेनी ऑफ यू से सर योर आर्गुमेंट इज करेक्ट एंड एज पर लॉ we need not required to look at GSTR 2A? Please tell me in a chat box. अगर आप agreed है, say yes.
अगर आप मेरे से सहमत हैं, से यस, और अगर आप मेरे से सहमत नहीं हैं तो भी चिंता नहीं करने का, मैं तैयार हूं, आप मुझे नो बोल सकते हैं। ओके, आर्गुमेंट साउंड्स वेरी गुड बट लॉट ऑफ लिटिगेशन इन्वॉल्व। ओके, ऑल राइट। तो केयूर भाई, चैट बॉक्स में जो वाइब्रेशन थी वो संतोष, क्रॉस चेक पर्पस टू सी, फॉर क्रॉस चेक, संतोष जी सी, जो इधर में मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूं, जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, विश्वास मानिए संतोष भाई। लेट इट बी लिटिगेशन, लॉ से बियॉन्ड तो नहीं हो सकता ना। एक दूसरा आर्गुमेंट आपके सामने दूं संतोष भाई, दूसरा आर्गुमेंट, एक्ट को हमेशा फादर कहा जाता है, एक्ट को हमेशा फादर कहा जाता है, फादर, और बेटे को रूल कहा जाता है। Am I right? And beta cannot draw power unless given by the father. देखिए लॉ में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, unless provision act gives the power, unless, जब तक नहीं दिया है आप कोई रूल नहीं बना सकते। आप कोई आर्टिफिशियल रूल बना दो, 2A बना दो, फिर 2B बना दो, और फिर बोलो ड्रामा करने का। सर कौन सा ड्रामा, कैसा ड्रामा, प्लीज। अब मैं आपको दूसरा आर्गुमेंट दूंगा जो आपको बड़ा इंटरेस्टिंगली चीजें समझाने की कोशिश करेगा। दूसरा आर्गुमेंट, मैंने कहा रूल जीएसटीआर 2A जिसकी हम बात कर रहे हैं, लॉ वाइज मैंने आपको समझाया, राइट। रूल 36 सब रूल 4 आया था, आप लोगों को याद है, आपको सबको याद है, came from 9th of October 2019. It was prospective, not retrospective. रूल 36 सब रूल 4 क्या था, एक बार बैकग्राउंड दूं केयूर भाई, आपको ध्यान से सुनना है क्योंकि आपको आंसर भी करना है, क्योंकि चैट बॉक्स में देखिए पहले हमने जो कहा और बाद में हमने जो कहा हमें आंसर्स में करेक्शंस मिले। लिसन, रूल 36 सब रूल 4 सेज, आवाज म्यूट करने का है, वी आर जंवर जी, म्यूट हो गया, हो गया। सर 1 मिनट, विमल जैन सर को म्यूट कर दिया आपने, सर यू आर ऑन म्यूट। सर अनम्यूट कर दिया है। मैं अब अनम्यूट हो गया, लिसन टू मी केयरफुली। Rule 36 sub rule 4 says, as a recipient, as a buyer, there would be capping on ITC. Initially capping was 20%, reduced to 10% from 1st January 2020, reduced to 5% from 1st January 2021, pertaining to such invoice or debit note which is not uploaded or furnished by your supplier in GSTR1, meaning thereby आपके 2A में नहीं आ रहा, आपके 2A में नहीं आ रहा। ये 20%, 10%, which is now 5% going to be calculated on eligible credit coming in GSTR 2A of recipient. Am I right? तो समझने के लिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं केयूर भाई, और आप सबसे लेते हैं। उमेश डुडेजा जी, ये 5% है from 1st January 2021। अब एक इस एग्जांपल को सुनिए। एज ए रेसिपिएंट आपकी बुक्स में क्रेडिट है 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपीज, संदीप भाई 15 लाख रुपीज। आपके जीएसटीआर 2A में, बिकॉज आप क्रेडिट लेना चाहते हैं बीइंग रेसिपिएंट एंड बायर, आपके जीएसटीआर 2A में आ रहा है 10 लाख रुपए। So there is a gap of 5 lakh rupees, 5 lakh rupees.
Question is, can you avail total 15 lakh rupees credit first? अगर रूल 36 सब रूल 4 को मान ले एक बार के लिए, तो वो बोलता है बिमल पर्टेनिंग टू 5 लाख रुपीज जिसकी इनवॉइस आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में नहीं चढ़ाई है, उसकी कैपिंग हो जाएगी 5% ऑफ एलिजिबल क्रेडिट कमिंग इन योर 2A. एम आई राइट? तो आप लोग मुझे बताइए, मेरे पीछे का कोई बल्ब बंद करने के लिए कह रहे हैं राजेंद्र झवर जी. Shall I switch off that पीछे का बल्ब? ओके केयूर भाई, मैं स्विच ऑफ करूं? चलेगा. एक मिनट दे दीजिए बस. या किया, अब ठीक है राजेंद्र sir. झवर जी, इज इट ओके? चलो ठीक है, किया. अब आप लोग मुझे बताइए चैट बॉक्स में, पर्टेनिंग टू 5 लाख रुपीज जो आपके 2A में नहीं आ रहा, अगर रूल 36 सब रूल 4 को मान लें तो आपको कितने का क्रेडिट मिलेगा? पर्टेनिंग टू 5 लाख कितना मिलेगा? प्लीज बताइए, राइट इन ए चैट बॉक्स. सबसे आंसर चाहिए मुझे. आई नीड आंसर फ्रॉम ईच वन ऑफ यू. यू हैव टू गिव मी द आंसर कि हाँ सर ये आंसर आना चाहिए, प्लीज. ₹50,000. केवल भाई एग्रीड? Yes, sir. 50,000 Agreed? rupees. So total 10,50,000 रुपए. Yes. मैंने कहां से स्टार्ट किया था केयूर भाई? मैंने स्टार्ट किया था एनी रूल cannot override the provision and rule can be made only when provision permits so. अगर एक्ट फादर ने आपसे नहीं बोला, फादर ने आपको डेलीगेट नहीं किया, आप ऐसा कोई रूल नहीं बना सकते. दैट इज माय आंसर, सेकंड आंसर. अब मैं आपके साथ, मैंने आपको एक केस स्टडी में समझाया कि मेरे लिए जीएसटीआर 2A 2B का कोई रिलेवेंस नहीं है. इट इज कमिंग बाय वे ऑफ रूल. प्रोविजन परमिट नहीं करता. आपने ठीक कहा सर, लिटिगेशन होगा. लेट इट बी. अब लिटिगेशन होगा तो मैं एक चीज आपसे पूछता हूं, एंड दैट इज द सेकंड केस स्टडी. दैट इज द सेकंड केस स्टडी एंड वेरी इंटरेस्टिंग वन. आज आपको ये समझ में आएगा 2A 2B इतना झगड़ा किस बात के लिए. तो केयूर भाई अब आपको मैं विदा करता हूं. संदीप भाई को लेता हूं, कौन बनेगा करोड़पति की सीट पे अहमदनगर से. तो अकोला ब्रांच मैच जीत गया. अकोला ब्रांच ने सारे आंसर सही दिए और अकोला से जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे और अकोला के साथ अहमदनगर औरंगाबाद से, वो सभी जीत गए. अब हम अहमदनगर का टेस्ट करेंगे. संदीप जी आप तैयार हैं? यस सर. ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब तक आप ध्यान से नहीं सुनिएगा तब तक आपको आंसर समझ में नहीं आएगा. लिसन केयरफुली. आई एम ए सप्लायर, 2A 2B से ही कर रहा हूं मैं, बट बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरप्ले. यू विल लव दिस. आज का जो 1-1.5 घंटा हम एक साथ बैठे हैं, आपको इतना मजा आएगा. सर जीएसटी क्या पढ़ना सिखा दिया, बिल्कुल विथ योर हेल्प ओनली. लिसन, मैं सप्लायर हूं और आप मेरे बायर हैं महाराष्ट्र के. जब मैं माल बेचूंगा तो वो इंट्रा होगी या इंटर होगी? चैट बॉक्स में क्विकली हाँ ना सब करते जाइए, लिखते जाइए, इंट्रा होगी या इंटर होगी. तो आप लोग बताते जाइए. संदीप भाई इंट्रा या इंटर? इंटर हो जाएगी सर. तो मैं क्या चार्ज करूंगा? आईजीएसटी चार्ज करूंगा. यहां तक बात सही है? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? बिल्कुल.
अब मैंने इनवॉइस भी रेज किया, मैंने इंटरस्टेट भी चार्ज किया। अब GSTR 1 भरते वक्त मेरे से गलती हो गई, मैंने उसको इंट्रा स्टेट दिखा दिया। इनवॉइस मेरी इंटर की थी, मैंने IGST चार्ज किया था, पर GSTR 1 भरते वक्त मेरे से गलती हो गई सप्लायर से, मैंने उसे इंट्रा दिखा दिया C+S। Am I right? अब एज ए बायर आपके 2A में आएगा, यस और नो, इतना ही बोलना है चैट बॉक्स में। एज ए बायर आपके 2A में आएगा, प्लीज। संदीप भाई, नहीं आएगा सर। CGST और डेली SGST आपके उसमें नहीं, मिसमैच दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। आपकी कोई गलती थी क्या? एज ए बायर आपकी कोई गलती नहीं थी ना, आपके पास टैक्स इनवॉइस की कॉपी थी, यू हैव रिसीव्ड गुड्स एंड सर्विसेज, सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट भी कर दिया, IGST पे किया 3B में, बट 1 भरते वक्त गलती हो गया उससे। To error is human, and as a recipient you are filing a regular return। तो आपने तो चारों कंडीशन सेटिस्फाइड किए ना संदीप भाई? यस बिल्कुल सर। अब जस्ट 2A में नहीं आ रहा और प्लेस ऑफ सप्लाई से मिसमैच हो गया, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। See, this is the point, Sandeep bhai, and to all the participants, this is the point I was drawing कि सर 2A बना देने से नहीं चलेगा काम। आपने मुझे 4 कंडीशन दिए थे जिसको मैंने सेटिस्फाई किया। अब थोड़ा उल्टा कर लेते हैं इसको, संदीप भाई उल्टा कर लेते हैं। उल्टा कैसे करते हैं, इसका थोड़ा सा हम एक लिटिगेशन क्रिएट करते हैं। एक लिटिगेशन मद्रास हाई कोर्ट में गया, सन डाइकैन। Period involved was August 17 to December 17। जब आपने देखा संदीप भाई कि आपके 2A में नहीं आ रहा, आपने क्रेडिट तो IGST में ले लिया था, आपके 2A में नहीं आ रहा, आप मेरे पास आए अगस्त 2019 में, क्योंकि आपको मालूम है 17-18 की जो हम एनुअल रिटर्न भर रहे थे, एक्सटेंडेड डेट वी आर गिवन टू अस 31 जनवरी 2020। तो जब 9/9 से आप भर रहे थे तो अगस्त 19 में आप मेरे पास आते हैं, बोलते बिमल जी आपने ना गलती कर दी है, इंटर का इनवॉइस था, IGST इनवॉइस था, आपने इंट्रा दिखा दिया है, मेरे 2A में नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा। It can be vice versa, situation can be vice versa, नहीं शो कर रहा। अब मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा, मैंने 3B में ले लिया है आज की डेट में, बट 2A में नहीं आ रहा। आपने बोल दिया ना लिटिगेशन, लॉट ऑफ लिटिगेशन, अभी कई पार्टिसिपेंट्स ने कहा लॉट ऑफ लिटिगेशन है, लिटिगेशन। अब एज ए बायर आप मुझसे बोलते हैं बिमल जी आप अपना ठीक कराइए, GSTR 1 ठीक कराइए, ठीक नहीं कराएंगे तो ये पैसा मैं आपको नहीं दूंगा, आई विल नॉट पे यू दिस मनी, ITC, आई विल नॉट पे यू। मुझे नहीं मालूम कैसे ठीक कराएंगे। अब मेरे पास आ गया, अब एज ए सप्लायर मैं डिपार्टमेंट गया दौड़ दौड़ के, मैंने बोला साहब गलती हो गया साहब, GSTR 1 में मुझे इंटर दिखाना था, मैंने इंट्रा दिखा दिया, टैक्स मैंने ठीक पे किया है IGST 3B में, पर GSTR 1 में गलती हो गई है सर मेरे से, क्या करूं सर, अमेंड कर सकता हूं क्या? डिपार्टमेंट ऑफिसर है, यू नो डिपार्टमेंट ऑफिसर पूरा पैन इंडिया कैसे हैंडल करते हैं। किसी का हाथ लग गया भैया, हाथ लागल का मतलब हाथ लग गया ना सर, हो गया, म्यूट हो गया, कर दिया मैंने। नहीं, हाथ लागल का मतलब हाथ लग गया है, सही है ना? यस सर, बराबर बराबर।
लगता है कुछ जल रहा होगा, तो पापा मम्मी से चिल्ला के बोलता अरे हाथ लागे, हाथ लागे। मैं भी सीखिए थोड़ा बहुत इस बहाने आप लोगों की लैंग्वेज को। नेवरदलेस इट वाज एन लाइटेंड नोट, बट लिसन नाउ। मैंने ऑफिसर से बोला सर गलती हो गई मेरे से, अब इसको ठीक कर सकता हूं क्या? मैंने लेटर लिखा। ऑफिसर क्या बोलता मालूम है? बिमल जी कुछ नहीं हो सकता, 17-18 का लास्ट डेट था, अगर आप अमेंड करना चाहते थे 31 मार्च 2019। अगर आप लोग को बैकग्राउंड याद हो, नहीं हो तो आप मेरी बात मान लीजिए, 31 मार्च 2019 था अगर आपको अमेंड करना था। अब आप कुछ नहीं कर सकते। उसने मुझे एक सर्कुलर दिखाया, सर्कुलर नंबर 26 डेटेड 29 दिसंबर 2017, और सर्कुलर में लिखा था कि अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे, जीएसटीआर 1 और 3 भी रिवाइज नहीं कर पाएंगे। अमेंड कर सकते हैं, सब्सिक्वेंट मंथ में अमेंड कर सकते हैं। तो एक लाइटर नोट पे पूछूं आपसे, आप सभी से पूछूंगा, आप सबको मजा भी आएगा। जब हम जीएसटीआर 1, 3 भी भरते हैं, आपको मालूम है लास्ट डेट में नॉर्मली, और लास्ट डेट में दिन में तो रिटर्न भरता ही नहीं है, जाता ही रात को है, दिन में तो वो रिटर्न जाएगा ही नहीं। अब आप मान लीजिए आपने भरना चालू किया, आपकी 1 लाख रुपए की लायबिलिटी थी, अब आपने डाला वो रिटर्न ले ही नहीं रहा, तो आपने जीरो बढ़ा दिया, अभी भी नहीं ले रहा, एक और जीरो बढ़ा दिया, नहीं ले रहा, वो बेचारा जीरो बढ़ाते गया एक के बाद एक। जब सबमिटेड आया तब वो 100 करोड़ रुपया हो गया। वो बोलने लगा बाबा मेरे तो 1 लाख रुपया का भरना था, ये 100 करोड़ कैसे हो गया? वो जीरो डालते गया था ना, उसको तो दिख नहीं रहा था, तो वो डालते गया, 100 करोड़ हो गया। डिपार्टमेंट को मालूम पड़ गया, अरे यार हमारे इधर में लार्ज टैक्स पेयर आ गया, 100 करोड़ का लाइबिलिटी। अगले दिन उसके घर पे बोले बॉस वो जमा कराओ 100 करोड़ रुपया। बोले सर मेरे से गलती हो गया है, मैं तो 1 लाख रुपए की लाइबिलिटी थी, वो तो जीरो दिख नहीं रहा था। कई बार होता है प्रैक्टिकली, डू यू ऑल एग्री? पहले चैट बॉक्स में कई बार होता है ना, हम भर रहे होते हैं तो समझ में नहीं आता, कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा है कई बार होता है। तो वो 100 करोड़ हो गया, तो अब वो बोले नहीं वो 100 करोड़ रुपया। सारे पार्टिसिपेंट देखे, ये सब लोग, मतलब जीएसटी में एक चीज तो कॉमन है, हमारा दर्द सब कॉमन है, चाहे कोई लैंग्वेज हो, कोई रिलीजन हो, कोई रेस हो, कोई कास्ट हो, हम लोग का दर्द सेम है, पूरा पेन इंडिया। हम केरलाइट में बुलवाना, केरलाइट बुलवा लो, तमिल बुलवा लो, मलयालम बुलवा लो, मराठी बुलवा लो, पर है पेन एक जैसा। तो अब डिपार्टमेंट इधर इसको पकड़ता है, बोले 100 करोड़ तो जमा करना पड़ेगा। 1 नेशन 1 पेन 1 टैक्स, सीए पीयूष लोहिया। चलो दैट्स वेरी गुड कि आप लोग को अच्छा लग रहा है, आप लोग को मजा आ रहा है। सी दैट इज व्हाट आई वांटेड। एक हमारे फीमेल मेंबर मुझे देख रही है मेन स्क्रीन पे, गुरसीन बिंद्रा, तो मुझे ये भी अच्छा लग रहा है कि हाँ वीडियो ऑन करके सी इज वाचिंग मी, लिसनिंग मी सो केयरफुली। एंड कई बार आप अपना स्माइल देते हैं, अपनी वाइब्रेशन देते हो, तो मुझे लगता है कि हाँ यार यही समझाना चाह रहा था मैं। तो कई बार वीडियो में यही देखने की कोशिश करता हूँ, हाँ आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। सो यही एक सीए उमेश अग्रवाल है, कोई निर्मल कुमार ओझा है, महेश बियानी जी हैं, अभय भंडारी जी हैं। अब अभय भंडारी जी बहुत रिलैक्स मूड में एकदम, उन्होंने बोल दिया कि एकदम आराम करके 1 घंटा सुनूंगा बिमल जी। नहीं अभय जी आराम करो आप, I'm thankful to you, at least you have on your video and you're listening so carefully। मैंने नाम क्यों लिया मालूम है? हम लोग फिजिकल नहीं मिल पा रहे, वर्चुअल में वो मजा नहीं आता, लेकिन जब आप फील करते हैं ना कि नहीं यार कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ मजे वाली बात हो रही है, मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा हूं, तो मजा आता है। और आपके जो जीएसटी सीरीज जो आप कर रहे हैं उसमें मेरा सेशन मैं ऑलवेज चाहता हूं, मैं तो ऑलवेज कहता भी हूं कि बेस्ट होना चाहिए, लेकिन वो आपके बिना नहीं होगा। जब तक आपका साथ, बीजेपी बोलते ना सबका साथ सबका विकास, अब मैं भी आपका ही साथ चाहता हूं,
तो बैक टू द पॉइंट वेयर आई वाज, 100 करोड़ जमा के देने का है। बोला सर 1 लाख रुपए की लाइबिलिटी थी संदीप भाई, 1 लाख रुपए की, 100 करोड़। कोर्ट में चला गया केस, कोर्ट में केस चला गया। अब कोर्ट में डिपार्टमेंट बोलता है सर इसने भरा है, 100 करोड़ रुपया देना पड़ेगा इसको। तो वो बंदा बोलता है सर मैं कहां से दूंगा सर, आप मुझसे रिवाइज करवा लो, मेरी जो लाइबिलिटी है वो रिवाइज सर इससे बोलिए ना। डिपार्टमेंट बोलता है इससे बोलिए ना सर, ये सब्सिक्वेंट मंथ में अमेंड कर देगा। वो बोला सर अगर मैं जिंदगी भर भी अमेंड करूंगा ना तो भी 100 करोड़ एडजस्ट नहीं हो पाएगा। नहीं होगा। तो अब आप सोचो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, किस तरीके से होगा। तो हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। GSTR1 में मेरे से गलती हो गई, इंटर दिखाना था, राइट संदीप भाई, राइट, IGST दिखाना था, मैंने गलती से इंट्रा दिखा दिया, टाइम पीरियड खत्म हो गया, आपने मुझे रिवीजन का ऑप्शन नहीं दिया, मैं कैसे करेक्ट करूं। और अब मेरे बायर के पास आप जाते हैं, डिपार्टमेंट जाता है, बोलता संदीप तेरे को क्रेडिट नहीं मिलेगा रे। क्यों नहीं मिलेगा, 2A में नहीं आ रहा। संदीप बोलता सर मैंने चारों कंडीशन सेटिस्फाई की है, मेरे पास टैक्स इनवॉइस है, मैंने गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव किए हैं, सप्लायर ने IGST पे किया है एंड मैं रेगुलरली रिटर्न भर रहा हूं, मुझे क्रेडिट क्यों नहीं मिलेगा, 2A में नहीं आ रहा। अरे सप्लायर अगर गलती कर देगा और उस गलती के लिए वो आपके पास गया भी है कि सर मुझे अमेंड करने दो, आप अमेंड भी नहीं करने देते क्योंकि टाइम पीरियड खत्म, रिवाइज करने दो, प्रोविजन नहीं है, तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। कईयों ने कहा था लिटिगेशन, बट मैं फिर अगेन बैक टू माय सेम क्वेश्चन, इट्स 2A's डिटरमाइनिंग टू माय माइंड। संदीप आप लोग बताइए चैट बॉक्स में, क्या 2A डिटरमाइनिंग है फॉर अवेलिंग क्रेडिट? प्लीज टेल मी नाउ। मैंने आपको एक के बाद एक आर्गुमेंट दिए हैं, सो यू कांट से लिटिगेशन होगा, आई विल फाइट द लिटिगेशन, बट लिटिगेशन डज नॉट मीन कि मैं लॉ को पढ़ना बंद कर दूं। एम आई राइट संदीप भाई? यस बिल्कुल। 2A is not determining. And what Honorable Madras High Court has said, kindly allow them to amend their transaction because they have gone to you and you have not given them a window of revision. एक उल्टा करते हैं और भी मजा वाला, थर्ड केस स्टडी उल्टा। जलज भाई अब आपको ले लेते हैं, संदीप जी को लेकिन संदीप भाई मोबाइल नहीं चलने का, जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है उसको भगा देने का और मेरी तरफ ध्यान रखने का, ठीक है ना जलज भाई? यस सर। देखिए अब इंटरेस्टिंगली अब एक चीज अच्छा वाला करते हैं और जो आपको समझ में आना चाहिए। मैंने इंटर का इनवॉइस रेज किया, दिल्ली टू महाराष्ट्र, IGST चार्ज किया और मैंने 1 पे भी सही दिखाया, इंटर 3B में भी IGST पे किया, बट जलज भाई आपके उधर में प्रॉब्लम हो गया, आपका जो अकाउंटेंट है वो भरता ही रात को रिटर्न है, 3B रात को भर रहा था, इंटर में क्रेडिट लेना था IGST में, क्रेडिट गलती से ले लिया C+S में, क्रेडिट गलती से ले लिया C+S में, एम आई राइट? अब रिसिपिएंट के एंड पे मिस्टेक हुआ, सप्लायर नो फॉल्ट, इंटर इनवॉइस IGST charge correctly filed in GSTR1, coming in 2A as IGST, 3B में मैंने IGST पे किया, बट आपके एंड पे प्रॉब्लम हुआ, रिसिपिएंट के एंड पे। आपको लेना चाहिए था IGST की क्रेडिट, अब 3B में लेते हैं आप, आपके पास कई बार चैलेंज होता है, आप चैलेंज समझिए 17-18 से ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था,
और 2A came sometime in 2019. उससे पहले 2A नहीं होता था, तो मुझे मालूम, मुझे क्रॉस चेक करने के भी नहीं मिलता था। अब आपने गलती से ले लिया C+S में, आपको अब अपना 9 और 9C भरना है, along with your departmental officer. कोई CA महेश अनिल दामले हैं, he is agreeing to my answer, but his submission is, sir, why officers send notices on this point? ऑफिसर लोग इस पॉइंट पे नोटिस क्यों भेजते हैं? एक बार मुझे एफएम बना दो यार। एक बार मैं एफएम बनता हूं, जितने ऐसे ऑफिसर सबके कान मरोड़ के ना ठीक कर दूंगा। दूसरा, हाउ टू फाइट विद ऑफिसर। सर, अब एफएम के साथ मुझे होम मिनिस्टर भी बना दो, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको फाइट करने का है। प्लीज, आई विल डेफिनेटली डू, डोंट वरी अबाउट दैट। महेश भाई, चिंता नहीं करने का, आज मैं आपको स्ट्रॉन्ग करके जाऊंगा। पहले आप मेरी सुन लीजिए, फिर मैं बताऊंगा कैसे हैंडल करना चाहिए। हैंडल करने का तरीका, इट्स एन आर्ट। देखिए, शादी होती है ना, नई शादी, कितना फाइट होता है शुरू के 6 महीने में, क्योंकि थॉट प्रोसेस मैच नहीं करता, राइट? धीमे धीमे हम सब ट्यून हो जाते हैं, वो मुझे समझने लगती है और मैं उसे समझने लगता हूं। वो तभी पॉसिबल है जब हम एक साथ आगे आएंगे। थोड़ा मेरे साथ चलिए, जब खत्म करूंगा महेश भाई, आपके लिए एक्सप्लेन, आपके जरिए सबको एक्सप्लेन करूंगा। महेश भाई, मुझे नहीं मालूम, आपसे मैं नहीं मिला हूं, मैं तो चैट बॉक्स में आपका नाम देखा, आपका कमेंट देखा, सबको बता दिया। अब उसी बेसिक पॉइंट पे आते हैं। जलज भाई, जिसके लिए आप कौन बनेगा करोड़पति पे बैठे हैं। अब डिपार्टमेंट बोलता है, जलज भाई मैं क्रेडिट नहीं दूंगा, क्योंकि 2A में IGST है, आपने C+S ले लिया और टाइम लिमिट टू अवेल क्रेडिट, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। देखिए, मैं इंटरप्ले कर रहा हूं। बोला, सर वो टाइम गया, अब तो आपने जो गलत वाला लिया वो पे करो, C+S पे करो, और IGST की क्रेडिट नहीं दूंगा, टाइम लिमिट एक्सपायर्ड। 2B में अब आप सोचिए, एक सिचुएशन में जलज भाई की इतनी गलती हुई, अकाउंटेंट रात को जब 3B भर रहा था, उसने गलती से 3B में C+S डाल दिया, डालना चाहिए था आई। अब आप बताइए, उनको क्रेडिट नहीं मिलेगी? He has to reverse C+S IGST के लिए सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। Am I right? अब मैं आप सबसे एक चीज बोलता हूं, आप लोगों से 2 क्वेश्चन करूंगा। पहला क्वेश्चन, मेरे पास 2 ऑप्शन होंगे। जो मैंने गलत क्रेडिट ली C+S की, उसको मुझे पे करना पड़ेगा, और कई बार अगर मैंने यूटिलाइज कर ली तो along with interest। Am I right? IGST की क्रेडिट डिपार्टमेंट बोलेगा नहीं मिलेगा, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं, प्लीज लिसन दिस ऑप्शन वेरी केयरफुली। इस ऑप्शन में अब 2021 का एनुअल रिटर्न जाना है या नहीं जाना, दैट इज द सेकेंडरी मैटर, बट मैं आपको बताता हूं कि ऑप्शन 2 अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको कुछ पे नहीं करना, सिर्फ करेक्ट करना है। लिसन वेरी केयरफुली, यू हैव टू ओनली करेक्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स। टेबल 6A, कितने लोग एनुअल रिटर्न अपने हाथ से भरा है मुझे नहीं मालूम, बट जिनने भरा है वो मेरी बात से सहमत हो जाएंगे। टेबल 6A of GSTR 9 gets auto populated। आप जब टेबल 6 of GSTR 9 भर रहे होंगे जलज भाई, वो आपका 3B टेबल 4A से ऑटो पॉपुलेट होता है, राइट? उसमें C+S आ रहा होगा। यस। अब आपको करेक्ट करना है, राइट? आपकी क्रेडिट IGST की है। संदीप भाई,
केयूर भाई IGST की है। मैं आपसे क्या बोलूंगा मालूम है, टेबल 6B में जाके -C+S कर दीजिए और +IGST कर दीजिए। व्हाट आई एम सजेस्टिंग, -C+S जो गलत है, +IGST टेबल 6B में जाके कर दीजिए। एडिटेबल है, दैट इज एडिटेबल। अब इसको मैच करवाता हूं मैं आपको। टेबल 8A जो आपके 2A से ऑटो पॉपुलेट हो रहा होगा, टेबल 8A जो आपके 2A से ऑटो पॉप, उसमें I आ रहा होगा, IGST। और टेबल 8B आपका फिगर लेता है टेबल 6B से, तो आपने वहां तो C+S को करेक्ट कर दिया और I कर दिया तो मैच कर जाएगा, I कर दिया तो मैच कर जाएगा। अगर नहीं किया होता तो 2A is IGST and 6B would be C+S। मिसमैच और डिपार्टमेंट आपकी बात सुनता ही नहीं। Am I right? Am I right? इंटीमेट कर दीजिए डिपार्टमेंट को, सर गलती हुआ, टाइम पीरियड गया, अमेंड नहीं कर पाया, आई एम करेक्टिंग इन माय GSTR 9 and 9C is now matching and there is no revenue implication. Ultimately taxes are being paid. कोई CA महेश अनिल दामले हैं कोई इंसिडेंटली, सो महेश बोल भी यही रहा है जो अभी थोड़ा सा कुछ देर पहले मैंने बोला था कि वो शादी वाला एग्जाम्पल 6 महीने में सेट हो जाता है, तो वो बोल रहा है सर मेरी शादी भी 6 महीने पहले ही हुई है। तो महेश तुझसे अच्छा एग्जाम्पल अब कोई नहीं होगा ये समझाने के लिए कि 6 महीने ही शुरू के प्रॉब्लम है, उसके बाद तो सब समझ में आने लगता है। बट nevertheless option 2 is a better one with no interest. जलज भाई am I agreeable? Yes sir. अब मैं पार्टिसिपेंट से पूछूं, सभी पार्टिसिपेंट से प्लीज चैट बॉक्स में यू टेल मी, आपको एग्जाम्पल और जो ऑप्शन मैंने दिया समझ में आया? से यस इन चैट बॉक्स, बिग यस आना चाहिए आपका। मुझे लगना चाहिए मेरी मेहनत काम आ रही है, आपको समझ में आ रहा है एंड वी आर गोइंग फाइन विथ ईच अदर, वी आर अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। गुड, यू ऑल आर माई, वो आजकल वो क्या किस कौन सा फैक्टर बोलते हैं, इम्यूनिटी फैक्टर स्ट्रांग होना मांगता, राइट? उसके लिए कितने सारे डोजेस लगाने का, वैक्सीन लगाने का। हमारा डोजेस तो स्माइल करने का, हैप्पीनेस पास ऑन करने का, अच्छा सुनने का, अच्छा बोलने का, महेश की तरह आने का। सो मयूर धूत है, प्लीज वंस अगेन सर मयूर, अगर तू दोबारा बुलवाएगा ना तो तेरा ही टाइम खोटा। मेरा पास 6 केस स्टडी मुझे कंप्लीट करनी है, तो तुमको अगर मुझसे चाहिए तो मे बी इसको हम बाद में वीडियो अपलोड कर देंगे। केयूर भाई सर इस वीडियो को हम लोग बाद में अपलोड कर देंगे। मयूर यस सर, तो मुझे आगे बढ़ने दो, मुझे आगे बढ़ने दो जिससे ज्यादा से ज्यादा मिले। चलिए, अब मैंने 3 बड़े लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व किया और इन्वॉल्व करके चीजों को किया। अब एक पार्टिसिपेंट्स मैं चाहता हूँ ऑडियंस से लूं, जो ऑडियंस मुझे हेल्प करेगी। और मेरे लिए एक गुरसीन है, गुरसीन बिंद्रा। आप कॉन्फिडेंट हो गुरसीन टू कम ऑन कौन बनेगा करोड़पति? Yes sir, sure. चलो, सो गुरसीन में एकदम प्रॉम्प्ट है, गुरसीन तैयार है कि हाँ सर मैं तैयार हूँ। ओके गुरसीन, प्लीज टेल मी, and this is the 4th case study. 4th case study, interesting one. I'm a supplier and you are a recipient, Gursin. Buyer from Maharashtra. You are from Aurangabad or Ahmednagar or Akola? Aurangabad sir, Aurangabad. Aurangabad, okay, Aurangabad. So Maharashtra. I sold the goods to you with IGST. You have paid the amount to me 10 lakh
plus 1,80,000, which is supposed to be. Now I have not paid the taxes to the government department. I have not paid the taxes to the government department. My question to you, Gursin, as a buyer, as a recipient, you are at no fault. You are at no fault. Karan, listen carefully. आपकी कोई गलती नहीं थी. आपने मुझे दे दिए 10 लाख और प्लस 1,80,000. It's me, supplier, faulted with non-payment of tax. Please tell me, which I'm asking to all of you, including Gursin from Aurangabad. As a buyer, as a recipient, आपको credit मिलेगा. Tell me in a chat box. मिलेगा तो say yes. नहीं मिलेगा तो say no. Please. जो आपके मन में आए, जो आपको अच्छा लगे वो बोलिए कि नहीं मिला सर, मिलेगा, yes, no, जो समझ में आने का. Okay? No, 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 no. Okay, all right. So no वाले बंदे ज्यादा हैं. वो कहते हैं सर credit नहीं मिलेगा. They are saying credit. I have no control on supplier. Impossible duty cast. So Abhay Bhandari is like, saying, sir, गुरसीन भी यही बोलती है. गुरसीन का भी यही कहना, सर मैं क्या करूं अगर बिमल जी जमा नहीं करेंगे. मैंने बिमल को तो दे दिया, बिमल ने जमा नहीं कराया, मेरे को क्यों पकड़ते हो. गुरसीन भी यही बोलती है. बट लॉ वाइज But 16(2) is being violated. So 16(2) subsection C is violated. yes. एक आपकी साथी हैं कोई श्रुति शारदा, चैट बॉक्स में यू कैन सी आज चैट बॉक्स में हम लोग को ऐसा लग रहा है हम लोग आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं. श्रुति कह रही है कि सर मिलना तो चाहिए. ये हमारा अरविंद केजरीवाल बहुत बोलता रहता है इधर में से ही, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, बस चाहिए 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 से नहीं होगा ना, लॉ वाइज बोलना पड़ेगा. तो गुरसीन का पहले टेस्ट लेते हैं फिर आंसर देते हैं. गुरसीन, आपके हिसाब से क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? No, sir, 16(2) is being violated. So no credit available to you? No credit. Oh God, I don't need such kind of lawyer. Please help me out. I need some lawyer who can help me to say that credit milega. Am I right? Listen carefully. Gursin, you and all the participants. As per me, I'm of the opinion, credit milega. Milega. Listen carefully. बहुत ध्यान से सुनना है आप लोगों को. मयूर कैसे मिलेगा यही तो बताने का है. तेरी तो अभी अच्छा ये मयूर दूसरे हैं, तो मयूर सुनिए कैसे मिलेगा. गुरसीन के जरिए आप सबको समझा रहा हूं. प्री जीएसटी में भी ये डिस्प्यूट हुआ कि सेंट्रल एक्साइज की क्रेडिट सैंडविच में मिलेगी या नहीं मिलेगी, एंड देयर वाज अ फॉल्ट ऑफ सप्लायर नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस. Honorable Supreme Court in the case of KK Industries has held supplier's fault cannot be made ground for denial of credit to the buyer. So this was Supreme Court judgment. First. Second, in the case of Arise India, Delhi High Court, किसी का sound on है. Can I again put a request to mute everyone? Myself, okay. Listen. Delhi High Court has held, in the case of Arise India, credit can't be denied for the buyers for the fault of supplier. CA Abhishek Vyas hai. Please. Okay. Second ground. Second ground. And most of the High Court in India has held in favor of a buyer, recipient. Gursin, आपके favor में decision दिया हुआ है.
कि for the fault of supplier credit can't be denied except Bombay High Court. एक बॉम्बे हाई कोर्ट ने हमारे अगेंस्ट में डिसीजन दे रखा है. It's all pre-GST. In GST regime, Gurseen, if at all you have to fight a case, what you would be presenting before the court, and writ has been filed in the court, which has been admitted, and notice is being issued to the revenue in the Bharti Telemedia. It has been accepted. And what would be the argument? Listen very carefully. Listen very, very carefully, which I'm telling you. And one of the case which is very important for all of us together, DY Bethel Enterprises. DY Bethel Enterprises. Somebody has written in chat box just a while ago, CA Naresh Khandelwal. उस केस में क्या हुआ? Clearly listen, which I'm telling you, and this was connected to the topic. That's the reason I'm telling you. What is DY Bethel case? Listen very carefully. If credit is not available to you, Gurseen, then department will ask you कि गुरसीन आप वो जो क्रेडिट आपने लिया है ना आपको अवेलेबल नहीं होगा, वापस करो, along with interest. Now, in the case of DY Bethel Enterprises, Madurai bench of Madras High Court has held you can't demand tax liability from the recipient, Gurseen, unless you first do the investigation against the defaulting supplier, Bimal Jain. आपने बिमल जैन को तो पकड़ा ही नहीं. बिमल जैन भी तो रजिस्टर्ड है, जिसने टैक्स जमा नहीं कराया. आप उसके यहां पे भी तो जाओ, उसको पकड़ो तो सही कम से कम. उससे तो आपने कुछ किया नहीं और रेसिपिएंट के पास आ गए आप और बोलने लगे कि भाई अब ये जमा कराओ आप. ये तो मद्रास हाई कोर्ट मदुराई बेंच ने कहा नॉट पॉसिबल unless you take and do investigation inquiry against defaulting supplier. So first point, Gurseen, given to you. Second point I'm telling you. Second point, and this is very interesting, listen very carefully. As a recipient, do you have control on me? You don't have any control on me. Whether I have paid taxes or not, this information must come to you. अगर see जब आपने credit 17-18 का लिया या 18-19 का लिया, आपको मालूम भी तो पड़ना चाहिए कहीं से कि बिमल जैन डिफॉल्टिंग सप्लायर्स ने टैक्स जमा नहीं कराया. Am I right? मालूम पड़ना चाहिए ना. आप मुझे बताइए GSTR 2A कब आया? Sometime in 2019 January. So Gurseen, you can argue in the court saying that lordship, there has to be machinery provision which is given in the act. Act में दिया हुआ था. क्या दिया हुआ है act में? कि buyer को 2A मिलेगा, buyer 2A देखेगा और 2A में देखने के बाद अगर उसमें लिखा होगा कि सप्लायर ने टैक्स पेमेंट नहीं किया, तो आप एज ए रेसिपिएंट मुझे पकड़ सकते हो, बांध सकते हो कि अरे तुझे 2A दिखा तो था, उसमें लिखा तो था कि सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट नहीं किया. यानी आपके लिए दो पीरियड बन गए. 2A जब नहीं आया, उससे पहले का पीरियड प्री 2A एंड पोस्ट 2A. 2A में पहले प्रॉब्लम भी होती थी संदीप भाई. उसमें पहले ये नहीं आता था कि सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट किया या नहीं किया. गुरसीन, नहीं आता था, बाद में आने लगा था ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. तो मैं कोर्ट में बोलूंगा लॉर्डशिप, देयर इज वन लीगल मैक्सिम, लेक्स नॉन कॉजिट एड इम्पॉसिबिलिया.
इस लीगल मैक्सिम का मतलब है यू कैन नॉट कंपेल ए पर्सन टू डू समथिंग इम्पॉसिबल। मैं कोर्ट से बोलूंगा माय लॉर्ड मेरी क्या गलती थी, मेरे पास टैक्स इनवॉइस की कॉपी थी, मैंने गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव किए, मेरे सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट किया नहीं किया मुझे नहीं मालूम था, आपको मुझे 2A देना था डिपार्टमेंट को, उन्हें उसमें दिखाना था कि ये क्रेडिट ये जो लिया गया है उसका टैक्स सप्लायर बिमल जैन ने जमा नहीं किया, एंड एज ए रिसिपिएंट आप रेगुलरली रिटर्न भर रहे थे। तो जलज भाई बहुत क्लियर है, गुरसीन बहुत क्लियर है, प्री 2A you have legal argument and weightage, you cannot be asked to do something which is impossible, that credit can't be denied। लेकिन जब 2A आ गया और 2A में दिख रहा है कि सप्लायर बिमल जैन ने जमा नहीं कराया, तो डिपार्टमेंट आपसे बोल सकता है बिमल जी आप कैसे आर्ग्यू करेंगे जब आपको मालूम था कि आपके सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट नहीं किया, तब आप आर्ग्यू नहीं कर पाएंगे। तो मेरा कंक्लूजन आप सबके लिए, प्री 2A उमेश बरेलिया, प्लीज कयूर भाई सबको म्यूट कीजिए। ओके ओके, गुरसीन and everyone in this chat box, pre GSTR 2A I have strong argument and strong case. I cannot be asked to do something which is impossible, right? So for that period, in my humble opinion, credit is available, 100% available. If credit can be disputed, it can be disputed only for the period post GSTR 2A. And when you were having the information, your supplier has not paid the taxes. But with the case of DY Bethel Enterprises, even that credit can't be demanded from Gurseen until you take action against Bimal Jain. You try to recover the money from Bimal Jain. Bimal Jain के आप कुछ करोगे नहीं और सीधे रिसिपिएंट के घर में जाके नहीं अब तू जमा कर, along with interest जमा कर, penalty दे. I'm on a different footing. Even 73, 74 cannot be applied. But nevertheless, I have done this summary overall on the 4th case study. Tell me in a chat box. अब तक जो हमने किया, tell me in a chat box. Gurseen, what is your answer? Credit is available now. Can you change? Are you willing to change your answer? Because you said credit is not available because we have violated section 16 subsection 2 clause C. Please tell me in the chat box. Yes. For other participants, Gurseen can say what she want to say. Yes, sir. Now credit is available now. Yes, sir. Available? Convinced? Yes, very much. Convinced. So this is what the fees we are. That is what Gurseen we have to see, and Yes. that is what my take on the matter. All right. So अब हम सिर्फ आधे घंटे दूर हैं और 2 केस स्टडी और करूंगा, सिर्फ 2 केस स्टडी. डिपार्टमेंट ऑफिसर डिनाइड व्हाट टू डू. पंकज जी, वेरी सिंपल. डिपार्टमेंट तो होते हुए प्रोविजन पे नहीं देता. नहीं होते हुए प्रोविजन पे आप कैसे लेके आएंगे? दैट इज एन आर्ट. लिटिगेशन अगर लड़ना है तो लड़ेंगे. That is the important one. If litigation we have to fight litigation. Am I right? वही करने का. सर मैं यहाँ हूँ लेकिन मुझे जीएसटी का कुछ भी नहीं आता, मैं कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करता हूँ. ओह पंकज भाई चेयरमैन ऑफ औरंगाबाद ब्रांच. इधर में मैं अगर सबसे पूछूं ना चैट बॉक्स में, सबसे पूछूं चैट बॉक्स में कि कितने लोगों को आता है कितने लोगों को नहीं आता, देखिए जिसको नहीं आता उसको ही सबसे ज्यादा आता है. नहीं मैं तो जीएसटी का प्रैक्टिस ही नहीं करता. नहीं सर, पंकज भाई ठीक बोल रहा हूँ. अगर आता है तो आप बोल देंगे गुरसीन की तरह सर नहीं मिलेगा क्रेडिट, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 वायोलेटेड. देखिए
एक होता है लॉजिक, एक होता है लॉ। पंकज भाई Yes, sir. मेरी ओर, एक होता है लॉजिक, एक होता है लॉ। लॉजिक ऑलवेज ये बोलेगा कि अगर बिमल ने टैक्स का पेमेंट नहीं किया, आप बाहर के क्रेडिट को कैसे डिनाई कर देंगे, और हमें आर्गुमेंट बिल्ड करने पड़ते हैं, राइट? करने पड़ते हैं ना। तो आप अगर नहीं करते तो आपके जरिए पंकज जी मैं सबसे पूछता हूं, सबसे, देखिए मैंने कहा है आप लोग हैंडमेड नोट बना रहे हैं, मैं अपना मोबाइल नंबर भी आपसे शेयर करूंगा जो आप मुझे भेजेंगे। मैं देखूं तो सही कितने पार्टिसिपेंट्स थे जिनने आज मन लगा के मेरी बात सुनी, कुछ नोट किया, और फिर आपसे बात भी करूंगा लास्ट में। 2 केस स्टडी हैं, और 2 केस स्टडी में एक पहले लेते हैं, टाइम परमिट करेगा तो लास्ट वाली लेंगे। तो एक केस स्टडी को करता हूं। तो पंकज भाई आप नहीं करते, राइट? आप अनम्यूट कर लीजिए। पंकज भाई ये वाली केस स्टडी आपके साथ करनी है मुझे, पंकज भाई आपके साथ करनी है, और आपको नहीं आता, और आज मैं आपको जीएसटी सिखा के जाऊंगा, जीएसटी सिखा के जाऊंगा। ये पंकज भाई की प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स हियर, ऑल द पार्टिसिपेंट्स हियर। विश्वास मानिए ये आपकी भी प्रॉब्लम है, मेरी भी प्रॉब्लम है। मैंने कहा ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी लैंग्वेज, रिलीजन, रेस एंड कास्ट, लिसन वेरी केयरफुली। द लास्ट केस स्टडी मोस्ट प्रोबेबली पंकज जी को लेके करेंगे। पंकज जी ने कहा पंकज जी को नहीं आता, बट पंकज जी अभी थोड़ी देर में बोलेंगे सर आता तो है, लेकिन वो ऑफिस में कोई और जीएसटी की बात करता है। पर पंकज भाई सुनिए, जीएसटीआर 3B आपका भर रहा था, जीएसटीआर 3B। देखिए जी सप्लायर, all right, Gusin, not an issue. Listen carefully now. पंकज भाई लिसन, आप अपने को अनम्यूट कीजिए पहले। Yes, sir. एज ए सप्लायर मैं जीएसटीआर 1 भरता हूं, 3B भरता हूं, और 3B, अब आज अनम्यूट प्लीज। अच्छा ठीक है, ठीक है। 1 भरता हूं, 3B भरता हूं, और 3B में क्रेडिट लेता हूं, जिसमें जीएसटीआर 2A का नाटक चालू कर दिया। केयूर भाई ने कहा 2A देखना पड़ेगा, संदीप भाई ने भी कहा 2A देखना पड़ेगा, राइट? मान लीजिए आप जीएसटीआर 1 भरते हैं, आपकी 50,000 रुपए की लाइबिलिटी है, 50,000 रुपीज की लाइबिलिटी है। एंड आई एम आस्किंग टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, प्लीज, ये आपके लिए भी क्वेश्चन है। 50,000 रुपीज इज द लाइबिलिटी। बाय मिस्टेक आपने जीएसटीआर 1 में 1 लाख रुपए चढ़ा दिया, बाय मिस्टेक, टू क्लरिकल एज, टू एरर एज ह्यूमन, क्लरिकल एरर हो गया मेरे से। मैंने 50,000 को 1 लाख कहा है, अभी वो जीरो नहीं बढ़ाए जो रात को बढ़ते हैं, अभी उन जीरो को मैंने नहीं बढ़ाया। अब वो 10 लाख भी हो सकता था, 1 करोड़ भी हो सकता था। तो 50,000 को 1 लाख कर दिया जीएसटीआर 1 में, आपको देना 50,000 रुपए था। अब जीएसटीआर 3B आप भरेंगे, पंकज भाई भरेंगे ना, तो आपको मालूम पड़ गया मुझसे गलती हो गई है, मुझे 50,000 दिखाना था, मैंने गलती से क्या दिखा दिया, 1 लाख। आप कितना टैक्स पे करेंगे, 50,000 या 1 लाख? सर मैं 50,000 का ही क्रेडिट लूंगा। नहीं, क्रेडिट की बात नहीं है, क्रेडिट की बात नहीं है, लाइबिलिटी की बात चल रही है पंकज भाई, लाइबिलिटी की बात चल रही है। चैट बॉक्स में डालिए आप लोग सब, चैट बॉक्स में 50,000 भरेंगे ना? कोई जीएसटी नॉलेज नहीं चाहिए ना इसके लिए? नहीं चाहिए ना, किसी को नहीं चाहिए जीएसटी नॉलेज। लॉजिक बोलता है यार मेरी 50,000 की लाइबिलिटी थी, गलती से मैंने जीएसटीआर 1 में 1 लाख रुपए दिखा दिया, तो क्या मैं 1 लाख जमा करूंगा? नहीं करूंगा। बट इनको समझ में नहीं आती सर, इनको मतलब समझ गए ना पंकज भाई, समझ गए इनको मतलब कौन? गवर्नमेंट। हाँ गवर्नमेंट। इनको समझ में नहीं आता कि करे क्या। एक अभी फाइनेंस बिल में जो यूनियन बजट 2021 में आया, पता नहीं आपने ध्यान दिया या नहीं दिया, आप सबसे बोलूं क्लॉज 105 फाइनेंस बिल यूनियन बजट 2021,
पंकज भाई वो क्या बोलता है मालूम है? वो ये बोलता है, बिमल जो डिफरेंस है 1 और 3B का, उसको सेल्फ असेसमेंट टैक्स मान लिया जाएगा। उफ, मान लिया जाएगा, ऊपर से थोपना, एंड दैट विल बी रिकवर्ड विदाउट इशुएंस ऑफ सो कॉज नोटिस। उसकी रिकवरी भी डिपार्टमेंट कर लेगा। सर अब आप ये प्रोविजन सुनो, और सुनने के बाद संदीप भाई, पंकज भाई, केयूर भाई, आप तीनों चेयरमैन हो 3 ब्रांच के, कौन सा बंदा जीएसटी का इस बात को एग्री करेगा कि दिस कैन बी ए प्रोविजन, दिस कैन बी ए प्रोविजन? इट इज utter, I will say, illogical. Gursin, illogical. No logic required. कुछ नहीं, कैसे हो सकता है? I was meeting with the senior officials. मिल रहा था CBIC के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई। पंकज भाई मैं मिला उनसे, मैंने कहा सर यूनियन बजट 2021 अभी का बजट, और आप ये प्रोविजन, एक एक्सप्लेनेशन आप डालते हैं, आप ये एक्सप्लेनेशन अंडर सेक्शन 75 सबसेक्शन 12 ऑफ CGST एक्ट में डालते हैं, ये गलत है सर। तो पहले छूटते उन्होंने क्वेश्चन मुझसे किया, बिमल जी जो सप्लायर है उसने 1 लाख दिखा दिया, 2A में 1 लाख चला गया, बायर तो 1 लाख की क्रेडिट ले लेगा, तो आपको 50,000 की एक्सेस क्रेडिट नहीं मिल गई। अब मेरा क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट होता है, इस 2A इज डिटरमाइनिंग फैक्टर? केयूर भाई, इज 2A इज अ डिटरमाइनिंग फैक्टर? नो, इट इज नो। इट इज ओनली योर 4 कंडीशन, जो इनवॉइस आपके पास है 50,000 की, उसी की क्रेडिट मिलेगी ना आपको, am I right? और मेरी लायबिलिटी भी 50,000 होगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप ध्यान से सुनिए। उन्होंने पूछा, बिमल जी आप लोग कंप्लेन करने बहुत आते हैं, आप लोग बताइए क्या होना चाहिए था? अगर ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स नहीं है तो मुझे लॉ में क्या करना चाहिए जिससे आपको इलॉजिकल ना लगे? तो गुरसीन भी अब आंसर कर सकते हैं और आप भी आंसर कर सकते हैं। चैट बॉक्स में मैं देखना चाहता हूं, आप लोग आंसर दीजिए कि अगर आपको सजेशन देना है गवर्नमेंट को, तो इसमें आपका सजेशन क्या होगा? एक्सेप्ट हार्डशिप, इलॉजिकल, ये नहीं बोलने का, आंसर दीजिए क्या करना है। क्या रिटर्न को रिवाइज करने दिया जाए? सो श्रुति है, श्रुति कह रहे हैं कि रिटर्न को रिवाइज करने का ऑप्शन दे दो। अभी तक रिवीजन वाले ऑप्शन सबसे ज्यादा हैं, जो चैट बॉक्स में सब डाल रहे हैं, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। मैं आंसर एज ए ऑफिसर मैंने कहा मैं रिवीजन नहीं दूंगा आपको, मैं आपको रिवाइज नहीं करने दूंगा। अब आप बताइए आप क्या आंसर कर सकते हैं? पीयूष लोहिया जी, मैं आपको रिवीजन का ऑप्शन नहीं दूंगा। करण, आई विल गिव यू द आंसर, बट फर्स्ट टेल मी कि मैं आपको रिवीजन का ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, आपको बताइए कि आप क्या चाहेंगे। एक है कोई CA सचिन रास्कर, अभी तक CA आदित्य नवंदार, ओके, करण केडिया सो कॉज नोटिस। लिसन वेरी केयरफुली, मैंने क्या आंसर दिया आप भी तो सुनना चाहेंगे। पंकज भाई, पंकज भाई, यस सर। मेरा आंसर मुझे मत पूछिए। Pankaj bhai, he's so honest. He's so honest. He's so honest. I must compliment him. He's so honest. He said, "Sir, मुझे नहीं मालूम, मुझे मत फंसाओ." कोई इशू नहीं। पंकज भाई, आपके बहाने हमने थोड़ा एंजॉय कर लिया। आप इनकम टैक्स का कुछ भी पूछ लीजिए सर, कुछ भी, मतलब कुछ भी, लेकिन GST का कुछ मत पूछिए सर। अब एक्चुअल में पंकज भाई प्रॉब्लम क्या है मालूम है? क्लाइंट क्या एक्सपेक्ट करता है मालूम है? क्लाइंट एक्सपेक्ट करता है हम लोग ऑलराउंडर होने चाहिए, इनकम टैक्स भी आना चाहिए, GST भी आना चाहिए, FEMA भी आना चाहिए। सर पार्टनर है सर उसके लिए। है?
उसके लिए पार्टनर है उसके लिए। उसके लिए पार्टनर है, ओके। बट वो क्या एक्सपेक्ट करता है मालूम है, आपका असाइनमेंट अगर इनकम टैक्स का है वो जीएसटी भी पूछेगा आपसे, तो पार्टनर आंसर दे देगा क्या? पार्टनर आंसर दे देगा? यस सर। नहीं देने का, नहीं देने का। सर वी हैव टू वर्थ, वी हैव टू प्राइस आवर सर्विसेज। नहीं प्राइस करके ही देंगे सर, फ्री में नहीं देंगे। हाँ, नहीं देंगे। देगा पार्टनर ही। अब रिजॉल्व करते हैं, इस क्वेरी को रिजॉल्व करते हैं। I answered to that officials. I said, sir, first of all, you are making provision recovery without issuance of so-called notice. See, वहां जाके आप litigation के point नहीं discuss कर सकते. I can only say, sir, how it can be self-assessment tax, and that to be recovered without issuance of so-called notice. Karan ने कहा, Karan said कि sir, without issuance of so-called notice कैसे हो सकता है? To me also नहीं हो सकता. बट मुझे उन्हें प्रैक्टिकल आंसर देना था जो पूछ रहे थे, तो मैंने क्या आंसर दिया सर? मैंने कहा सर आप रिवीजन का ऑप्शन तो दे नहीं रहे मेरे को। मेक T plus 2 month, tax period plus 2 month, tax period plus 4 month, tax period plus 6 month, जो आपको अच्छा लगता हो, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, तब तक आप उसे अमेंड करने का मौका दे दीजिए। उसके बाद बोलिए सेल्फ असेसमेंट टैक्स है। अब मैं तुझसे ये पैसा रिकवर करूंगा। सो T plus 2 month, T plus 4 month, T plus 6 month, जो आपको लगता हो। एंड दैट वुड बी द राइट अप्रोच, कि जिस सप्लायर से गलती हो गई वो अपने आप को करेक्ट कर लेगा। Am I right? Correct कर लेगा। And once corrected, that is the self-assessment tax. Now, please tell me in the chat box, with my answer to all of you, is it correct the way I suggested to all, to that CBIC officials? Tell me yes and no. That is the only thing which I'm looking for. Okay, okay, very well done. Okay, very well done. करेक्ट अप्रोच। सो करण केडिया ने अपना वीडियो ऑन कर दिया। करण केडिया अब तक लिख रहा था चैट बॉक्स में ना ओपन के मैं हूं कौन देख तो लो सर मुझे। चलो कोई इशू नहीं करण, आई हैव सीन यू आल्सो, दैट्स गुड। द लास्ट केस स्टडी, करण आपके साथ कर लें इस लास्ट केस स्टडी को? यस सर, नो प्रॉब्लम। चलो करण, लास्ट केस स्टडी विद ऑल ऑफ यू। लेकिन मेरी हम्बल सबमिशन, मैं अपना मोबाइल नंबर आज शेयर करूंगा। आप लोग जो जितना नोट आपने बनाया है, 2 लाइन का, 4 लाइन का, 6 लाइन का, 1 पेज का, 2 पेज का, मुझे भेजेंगे। लेट मी सी कितने पार्टिसिपेंट सिंसियरिटी के साथ पीपीटी बनाते हैं। एंड आई एम टेलिंग यू, जब आप हाथ से कोई नोट बनाते हैं ना, दैट गेट रजिस्टर्ड टू योर माइंड। आपने मुझे पीपीटी फॉर्म में सुना, उसमें क्या होता है ना, अटेंशन नहीं, जो मेरा टेक है, सॉरी टू से, with all due regards to my other speaker, कई बार पीपीटी फॉर्मेट goes on one-sided way, क्योंकि मैं आपको देख नहीं पा रहा। आपने वीडियो बंद करके चाय पी रहे हो, कॉफी पी रहे हो, मुझे नहीं मालूम। तीसरा, ऐसे कई बंदे होते हैं, ठीक है यार 2 घंटा है, खत्म होने दे, और अभी तो चेयरमैन बैठे हुए हैं, उनकी तो कंपल्सन है बैठना पड़ेगा, और मैंने तो कंपल्सन ऐसे कर दी कि वीडियो भी ऑन करो। तुमको कौन बनेगा करोड़पति वाले टेबल पे भी बैठना पड़ेगा, तो उनके लिए तो अभी जालज भाई बहुत प्रॉब्लम है उनके लिए। तो ये बिमल जी का सेशन नेक्स्ट टाइम करवाएं या नहीं करवाएं? करवाएंगे तो 2 घंटा हमको छुट्टी नहीं देंगे, बट कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को अच्छा क्या लगता है मालूम है? आप सबको अच्छा लगना चाहिए, आप सबको एंजॉयमेंट होना चाहिए। लास्ट केस स्टडी करेंगे एंड देन वी विल पार्ट, द लास्ट केस स्टडी ऑफ द डे। अब जीएसटीआर 3B, करण भाई। यस सर। मेरी लाइबिलिटी 50,000 रुपीज की थी। यस सर। अब गलती से मेरी एक सिस्टर फर्म है, उसका अलग जीएसटी नंबर है, मैंने उसकी टैक्स लाइबिलिटी अपने जीएसटी नंबर में दिखा दी 5 लाख रुपए की। So it become 5,50,000 rupees. I can't revise my GSTR 3B. It is only 50,000 versus 5 lakh. Had it been the case of
500 करोड़ करण एक हमने किया था ना, 1 लाख की लाइबिलिटी 100 करोड़ अगर हो जाती तो मैं तो पे नहीं कर सकता। तो ये बंदा SGST नोडल ऑफिसर के पास गया, बोला सर मेरे से गलती हो गई, मैंने 50,000 मेरी लाइबिलिटी है, गलती से मैंने अपनी सिस्टर फर्म की एंट्री 3B में दिखा दी है, आप मुझे रिवाइज करने दो। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, करण, whether department will allow No, sir. revision of 3B? No allowed. नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो ये बेचारा क्या करे, टैक्स पेयर क्या करे? अब इस बोर्ड में किसी के पास जा सकता है? हम लोग जितने बैठे हैं एज ए कंसल्टेंट, किसी के पास जाके अपनी प्रॉब्लम का निवारण कर सकता है? करण Yes, sir. जा सकता है. जा सकता है। तो आप चलिए, आपके पास आ गया, सो मैं टैक्स पेयर हूं, मैं आपके पास आ गया, मेरे से गलती हो गई है, अब करण आपकी एडवाइस क्या होगी? नेक्स्ट इसमें सर क्रेडिट ले लेना उतना, लायबिलिटी कम कर देना नेक्स्ट रिटर्न में. सब्सिक्वेंट मंथ में आप अमेंड करोगे, यस. राइट? क्रेडिट नहीं, सॉरी, अमेंडमेंट. कोई इशू नहीं। करण अभी हम लोग ऑनलाइन है, यस. अगर जरा भी करेक्ट हमने नहीं किया अपने आप को और वीडियो अपलोड हुआ तो कितने लोग सुन रहे होंगे? यस सर. वो बोल, और उधर में सुनने वाले माइन्यूटली एक एक चीज को पकड़ते हैं। बिमल जी आपने वो कैसे बोल दिया बताइए तो, कैसे बोल दिया? तो कोई इश्यू नहीं। तो नेक्स्ट मंथ में अमेंडमेंट, लेकिन बेचारे बिमल जैन के पास 5,50,000 देने के लिए चाहिए ना, तभी 3B भर पाएगा, अदरवाइज नहीं भर पाएगा। और अगर उसने इस मंथ का नहीं 3B, मान लीजिए 3B नहीं भरा, तो आगे के कोई भी 3B नहीं भर पाएगा। एम आई राइट? मेरे पास नहीं है 5,50,000 रुपए, नो मनी। अब आप मुझसे ये मांगते रहोगे, पॉसिबल नहीं है ना। कोर्ट में चला गया केस, दिस केस हैज गॉन इन द गुजरात हाई कोर्ट, दीपक प्रिंट्स। So facts I created from the court case law, गुजरात हाई कोर्ट के पास गया, बोला सर आसी केवल भाई, ओके चलिए ठीक है। जब केस पहुंच गया कोर्ट में जाके जब आर्गुमेंट हुआ तो कोर्ट में टैक्स पेयर ने आर्गुमेंट दिया, सर मैं रिवाइज नहीं कर सकता। मैंने SGST ऑफिशियल्स को लिखा, पर सर नॉर्मल पैन इंडिया ये आपके पास कोई जवाब नहीं आएगा, चाहे वो पूना हो, औरंगाबाद हो, अहमदनगर हो या अकोला हो, जवाब नहीं आएगा। एज ए कंसल्टेंट मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैं रिट फाइल कर सकता हूं कि सर मुझे रिवीजन का ऑप्शन दिया जाए। कोर्ट हैज एक्सेप्टेड माय व्यू एंड सेइंग यस, आप उसे रिवीजन का ऑप्शन नहीं देते और अमेंड सब्सिक्वेंट मंथ में वो करेगा बेचारा, कब तक करेगा? देयर हैज टू बी सम लिमिट। यू अलाउ हिम रिवीजन ऑप्शन, एंड वो आपके पास गया था, आपसे मिला था, आपको लिखा था, आपने क्या किया? आप SGST नोडल ऑफिसर, आपने कहा मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है। वो एक बाबा है, सॉरी लाइटर नोट पे बोल रहा हूं, GST नेटवर्क, ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं ना, वो टिकट रेज कर दीजिए आप, टिकट, उसमें एक ही चीज है, टिकट रेज कर दीजिए और नेक्स्ट डे 24 आवर्स में टिकट खत्म, सॉल्व हुआ ही नहीं, क्वेरी सॉल्व ही नहीं हुआ, क्वेरी सॉल्व ही नहीं हुई और वो टिकट खत्म। आप बस टिकट पे टिकट, टिकट पे टिकट, वो पिक्चर थी ना, डेट पे डेट, डेट पे डेट, इधर टिकट पे टिकट और सॉल्यूशन। सॉरी, कोई अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल देखते हैं तो मेरी बात को नेगेटिव ना लें। दिस इज लाइक वी आर एंजॉयिंग इंटरैक्टिव सेशन। आई एम टेलिंग यू द रियलिटी, बिलीव मी। इन चैट बॉक्स टेल मी, एम आई राइट इन सेइंग सो? जो कमेंट मैंने किया आप चैट बॉक्स में बताइए, मैंने सही कहा या नहीं कहा, सही यस और नो, कि वो टिकट पे टिकट, लेकिन सॉल्यूशन नहीं आता। करण भाई नहीं आता सॉल्यूशन। तो देखिए आप सब यस कह रहे हैं, सो अगर गवर्नमेंट ऑफिसर बाद में मेरा अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो दे शुड नॉट से बिमल ऐसा क्यों कह रहा है। दिस इज द रियलिटी ऑफ पैन इंडिया, बिलीव मी, रियलिटी, वी हैव टू करेक्ट इट। अगर मुझे जाना है तो मैं लोकल ऑफिसर के पास ही जाऊंगा,
लोकल ऑफिसर मुझसे बोलेगा जीएसटीएन करेगा, जीएसटीएन मुझसे बोलेगा टिकट रेज कर, और प्रॉब्लम कहीं भी सॉल्व नहीं हो रही। मैं कहां जाऊं? Where should I go? Please help me out. I'm looking for the answer. I'm looking for the solution. Please. सर नहीं हुआ तो मैंने कोर्ट में कन्विंस किया करण भाई। मैंने कहा लॉर्डशिप कुछ नहीं हो रहा। ऑफिसर ने मेरी बात सुनी नहीं, जीएसटीएन टिकट रेज कर देता है, मैं कहां जाऊं? आई शुड बी अलाउड टू रिवाइज माय 3B. Honorable Gujarat High Court in the case of Deepak Print has allowed revision of GSTR 3B. Next question comes, sir, ये उसी को फायदा देगा या सबको फायदा देगा? Writ is in the name of personam or ram. Writ is always going to benefit to the petitioner only as per the legal terms. But can we draw persuasive value for our preparation to build up a case? Karan, क्या मैं persuasive value draw कर सकता हूं? Yes, I can draw persuasive value for doing the cases, for undertaking the things. तो अगर आपका amount ज्यादा है and it's worth litigation, we must try out, we must give a try to it, and that is the way we can do it. So this was the last case study. Now my humble point to all of you before you leave, I know that time होता तो फटाफट भागने का लगता है, 2-4 minutes with due permission from all of you. I'm first sharing my mobile number. आप लोगों ने जो भी नोट बनाया है उस नोट को मुझे भेजिए, अपनी कंस्ट्रक्टिव सजेशन, फीडबैक। इफ यू हैव लाइक्ड इट, आप 2 वर्ड अच्छे मीठे वाले भी लिखिएगा। अगर आपको लगता है कोई अच्छा सजेशन आपके माइंड में है तो जरूर दीजिएगा। एंड विद दिस प्रोसेस मुझे भी लगेगा ना कि औरंगाबाद, अकोला एंड अहमदनगर तीनों में मेरे कितने साथी हैं। फर्स्ट नोट डाउन माय मोबाइल नंबर 98-106-04-563 98-106-04-563 मैंने अपना नंबर दिया। अब मैं एक चीज और ऐड करूं आपको। आज आपने वॉच किया वेबिनार, आप मुझे बताइए, टेल मी, हम लोग वेबिनार करते हैं, फिजिकल भी करते हैं, इंटरेक्शन भी करते हैं आपस में। टेल मी, मैंने तो कोशिश बहुत की अपनी तरफ से। आई क्रिएटेड 6 केस स्टडी, 2A 2B को ही सामने रखा मैंने, एंड डिड लॉट ऑफ केस स्टडी। कईयों को कौन बनेगा करोड़पति की सीट पे भी बैठाया। आप बताइए, आपको मजा आया या नहीं आया? तो मुझे आपको पेटीएम में पैसा नहीं भेजना ना, ये क्योंकि मैंने आपसे 1-1 घंटे का टाइम मांगा था। टेल मी वेदर यू लाइक इट और नॉट। यस सर। Yes, sir. Super like. Very interesting, sir. Super like. पंकज सर जैसी हालत Definitely, sir. Good evening, Vimal sir. गुड इवनिंग आनंद जी, आनंद कैसे भाई? हैं? गुड All इवनिंग, well, गुड sir. इवनिंग। All well. ओम कटी बोल रहे हैं, कटो बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मजा आया तो आपको मुझे पेटीएम में पैसा भेजना है। मैंने कहा था ना कि अगर आपको मजा नहीं आएगा तो मैं भेजूंगा, और आपको मजा आया तो आप मुझे भेजेंगे, मुझे नहीं भेजना। We are passing through COVID-19 time period. A lot of help, assistance, happiness, wellness. Do whatever best you can do. तन, मन, धन, जो हो सकता है कीजिए। वेलनेस मैसेज, हैप्पीनेस मैसेज। हमारे में ना, हमारे धर्म में एक है मंगल भावना, जिसमें हम सबका भला चाहते हैं। Let's pass on, spread happiness and wellness message. वेरी इंटरेस्टिंग सेशन लिख दिया मैंने। Two line only. मंगल होई जगत में, सब मंगल में होई। इस धरती पे हर प्राणी का सब मंगल में होई।
Let's pray for all humankind on this earth that we should pass through this COVID-19 second wave. So अगर मुझे पेटीएम में पैसा भेजने का है ना, तो किधर भेजने का? Do your help, whatever best you can do. Yes, sir. सबका मंगल, जो कर सकते हैं आप, जो आपसे हो सकता है. And last, you can get in touch with me. Regular update on GST with my YouTube channel, Twitter, LinkedIn, and Facebook. And I shared my mobile number with all of you. तो आप कभी क्वेरी भेजना चाहे भेजें. If time permits, I'm taking this disclaimer. If time permits, I will try to reply. अगर time permit नहीं हुआ और मैं reply नहीं कर पाया, कोई problem नहीं. हमारा interaction, हमारे साथ तो जुड़ेगा एक दूसरे के साथ. So let's take it forward, and let me conclude my session thanking each one of you and all three branches, along with Anand Bhai from WIRC, who have joined now. Thanking each one of you, and wish and pray that you should look after yourself, your family, stay safe at your home, and God bless all of us together. Thanks for listening today, and thank you very much. You made this webinar a successful one. Thank you very much. Thank you, Vimal sir. It was really a nice and a unique type of session what we had. करोड़पति तो जैसे टीवी पे ऐड आ ही रही है, करोड़पति शुरू होने वाला है, पर उसके पहले ही आपने हॉट सीट पर बैठा दिया सबको. Thank you very much for the session, sir, and thank you for your valuable time also. As you rightly pointed out, ki Anand Bhai is there from WIRC with us, the past treasurer of WIRC. I request Anand Bhai to please share a few words with us. Thanks, Jalaj. Thanks, Bimal sir. After listening to Bimal sir, who will listen to me? But we'll speak for a minute. Bimal sir, it was a superb gesture from your side, in spite of your busy schedule. When we requested, you manage your time and we had this session, and you have showered a superb knowledge today, even earlier 2 years back when we had the first Mega National Conference, mainly hosted by Apola at Shegao 2 years back. We remember you personally visited that place, and that time we had that physical conference at Shegao. You traveled a lot for that, and now with these virtual platforms blessings, hopefully we will hear from you at least twice a year. All these branches will love to get knowledge from you, and it was amazing, Miss. I saw that you shared your personal mobile number with all the members. That shows the touch and the love with the fraternity. Really grateful to you, all the three branches and WIRC. We all are grateful to you, sir. Excellent session. I was seeing on social media that the followers, number of followers, 50,000 plus people are subscribed your groups and on social media. So thank you very much. Are getting benefited. That's amazing, Miss. वो रिकॉर्ड अगर चेक किया, अगर मुझे लगता है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और अदर रिकॉर्ड्स पे इसका बिल्कुल ऊपर नाम आएगा. इतने सारे फॉलोअर्स हैं. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you. Sir, there are no questions in question box, I guess. Keyur bhai, are there any questions? Sir, not exactly, but एक दो situations जैसे बोली हैं. एक जैसे सवाल है निखिल भाई की तरफ से कि सेक्शन 16(4) के इस पे रेट पिटीशन करना है, उसके ऊपर अगर थोड़ा सा कुछ बिल्कुल करना चाहिए केयूर भाई, बिल्कुल करना चाहिए. एंड आई हैव गॉट माय ओन जस्टिफिकेशन आल्सो. सिंस टाइम कम है आज, तो आज मैंने उस टॉपिक को नहीं लिया. ओके, बट मैंने नटसेल में आपको आंसर दे रहा हूँ. यस, वी मस्ट गो फॉर इट. एंड यू आस्क्ड दैट पार्टिसिपेंट्स कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 टाइम लिमिट टू अवेल क्रेडिट इज सब्जेक्टिव वन. And I'm of the opinion, and I've got my own legal argument also, that this may be positive in favor of a taxpayer. Sir, another part with regards to this, CA Umesh Agrawal ji ne पूछा था that after so many litigations, that even after so many judgments of the Supreme Court, why this section is not yet challenged on its validity? See, क्या होता है, पहले आप हाई कोर्ट से ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे.
See, the approach, Supreme Court cannot entertain directly unless you have given a try to all alternative remedy available to you. Even writ court, which is High Court, sometimes look at the factual and question of law, and they will not look at the factuals. They will always look at on question of law. So different High Court has accepted the writ. Notice has been issued to the revenue, but yet to be decided. So it may take some time, but I'm sure that down the line, from my perspective, in my humble opinion, like Nikhil asked this question, I responded also that yes, this is worth going forward for the writ petition. I hope there was one query by Mahesh Bhai. हो गया होगा सॉल्व सर आपने जो एक्सप्लेन किया कैन वी क्लेम क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनल इनवॉइस तो महेश भाई ये सर ने काफी अच्छे से बताया बट यस सर his query was can we claim the credit on the basis of original invoice? Yes, not an issue and अवय का एक कोई आया है chat box में sir can you please repeat conclusion of 6th case study? Conclusion was अवय GSTR 3B can be revised and that was held by Honorable Gujarat High Court. This is what I concluded. Okay. Sir, as such बाकी queries नहीं है फिर तो आपके questions के answers ही ये सबने put up किए. कोई issue नहीं. I'm liking each one of you. I know that time हो गया है तो फटाफट लोग अपना leave करते हैं. But nevertheless, my regards to each one of you for joining today and making this webinar a successful one. And I'm sure आप लोगों ने लिख भी दिया कि अच्छा हुआ. So I'm thanking each one of you. Let's keep in touch. But importantly, stay safe, take care of yourself, your family, and do whatever best you can do during this COVID-19 time period. Take care of yourself and get in touch with me on Twitter, LinkedIn, YouTube, Facebook, wherever you like. And I given my mobile number as well, which is for your input, feedback, and suggestion. Will always be. Sometime query, if time permit, with disclaimer, because you know the time schedule हर बंदे का एक restriction के साथ होता है, but अगर time मिलेगा तो कई बार मैं answer करता हूँ, कुछ लोग होंगे जो इस बात को मानेंगे. So rest assured, I will try to reply back as well, and thanking my two outside participants जो थे गुरसीन थी, करण थे, जिनने कौन बनेगा करोड़पति की सीट पे बैठे और enjoy किया. जलज भाई आपको भी thank you very much. आनंद भाई once again thank you. Thanks to each one of you. Take care of yourself. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you so much, sir. Thank you. And we are looking forward to have a physical session very soon, sir. अब 2 साल हो रहे हैं almost. We didn't had any physical session of yours. करेंगे जलज भाई करेंगे. भगवान से ये तो प्रार्थना करनी है इस कोरोना से बाहर निकाल दो हम सबको. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Take care. Bye. Okay, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Anand bhai. Thank you, Kyur bhai. जलज भाई, संदीप भाई वर्चुअल इवेंट में छा गए सर. किरण भाई नमस्कार. नमस्ते बहुत बढ़िया हुआ आज के दिन. अरे वाह किरण भाई. और सर आनंद सर कैसा लग रहा है आईपीसी की सीट पे?